Good morning, everybody. So, as we all know, we are gathered here today for the discussion related to the examination conducted by UPSC recently, Civil Service Means examination. And our focus is to talk about the sociology question paper that has been there, both paper 1 and paper 2. And we are actually planning to discuss some of the questions that were there in the examination. But our approach toward looking at these question paper is more important rather than discussing what is the actual answer. So we'll try to develop this session into multiple parts. First part will be where we will try to understand whatever the question paper that was designed very recently. What were the questions they were asking? Which area of the syllabus they were focusing more on? So we'll try to compare it with paper 1 as well as paper 2. Especially in paper 1, we'll try to also see what was the weightage of 2021, 2022, and 2023 with respect to different topics in our subject. This will be our first objective today. The second objective will be to go through question paper of sociology paper 1. And we'll try to go through many of the questions where our objective will be to understand what area they were focusing on when they designed the question. Second is what shall be our approach if we are sitting in the examination hall. What shall be our approach to look at this question and how we shall be dealing with it. The third dimension will be, now today we are not sitting in the examination hall, but someday, let's say next year, 2024 or upcoming years, we will be sitting in the examination hall of UPSC and writing a mains examination. So to reach to that level, what shall be our strategy to understand the question paper? So yes, sir. First we'll try to understand what was the weightage to the different part of the syllabus they were giving. Both paper 1 and paper 2. In paper 1, we will compare it with the previous years also, 2021, 2022, with 2023. Second, we'll try to understand if we will be sitting in that examination hall. तो क्या हम लोग करते हैं उसके बारे में कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और क्या उसमें आंसर लिखते हैं. The third thing is that those who are preparing for the upcoming attempts, how you shall, let's say, modify your preparation style looking at the examination pattern. या जो अभी कर रहे हो, is it going in the right direction? Now that will be the most important area of our discussion today, because most of the students that are sitting in the classroom here in front of me or might be joined online, they are going to appear for the mains examination. कुछ लोग इन्होंने mains दिया है, वो आए कैसा आंसर लिखा है उन्होंने कोई वैल्यू. Let's start with this particular discussion. For that purpose, let me share my screen with you all people. And about the question that you will have regarding the discussion that we are having, we can try to solve your questions in two ways or in two different types. First thing is that we will keep the questions at the end of the session, and I will allocate certain times where we will have question answer session. Or in some cases, you are feeling that I want to get some clarification on the question or the discussion that is going on in that same moment only. Then you can just raise a hand and you can participate into discussion. But we'll prefer that let's keep the discussion at the end, so that I am trying to bring certain aspects of the answer writing or how to appear for the examination throughout the discussion process. I will be trying to counter it in a stepwise, right? So first of all, let's analyze it, right? Now you all can see on the screen that I am trying to showcase you paper 1 and paper 2. Both parts are there, and both parts are distributed into the syllabus that is there, right? Correct? So first of all, let's focus on only paper 1. Paper 1 ka syllabus again, and see what is the weightage UPSC has given while they were designing the question.
This is the most important part in your preparation. Why? Because see, they have given 10 topics in our syllabus, including subtopics in every syllabus and subtopics in every point that they have given in the syllabus. But while preparing, generally it happens that we give more focus on reading and understanding thinkers. In general, also in your lecture time that is allocated to you, or the time that you allocate for the self-study, majority of the time you are giving for the thinkers purpose. But if you look at the marks allocated to it are varying over the period of time. Here, if we focus on sociological thinkers, we can simply see this year they have allocated 40 marks. Last year they have allocated 70 marks. In the year before, they have allocated 30. But again, don't get confused at looking at the statistics, because thinkers, apart from any other part of the syllabus, only if we talk about thinkers are the most important part of the syllabus, because every other question is also dependent on thinker in one way or another way. And that's why just don't focus on the marks that are specifically allocated to this topic. The thinkers करना है कि कितने percentage में करना है, we shall not be going through that logic for this topic only. Thinkers के लिए, thinkers के लिए again we are going to give almost half of our time in our preparation in the beginning of your preparation. एक बार आपके thinkers तरीके तैयार हो गए and you are moving to the second part of preparation, that is you are going through the different social institutions like stratification पढ़ रहे हो, religion पढ़ रहे हो, politics पढ़ रहे हो, work and economic life, family kinship पढ़ रहे हो. वापस you are going to come to that particular thinkers, and thinkers are going to be again revised or थोड़ी से strong बचेंगे. So barring these part of syllabus, we will focus on other parts of syllabus. Like the way I always discuss these first three topics: sociology, the discipline, sociology as a science, and sociology, related research methods and analysis. सारे को मिलके सोशियोलॉजी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी बोलते सिंपल कर देंगे. तो इसके ऊपर आप देखो, हमेशा आपको वेटेज दिखेगा अराउंड 100 मार्क्स. देखो यहाँ पे भी देखो, ठीक है. तो दिस इज 110 मार्क्स है. लास्ट ईयर भी 110 मार्क्स था, उसके पहले 100 मार्क्स था. So generally you will find out that there will be always 100 marks allocated to this part of syllabus. Believe me, this is the easiest part of your syllabus. Now I am saying easiest because very little area is there where you need to go into the depth to understand any particular aspect. It is very straightforward part of your syllabus. You just need to understand what areas they are generally focusing on. For an example, they are every year asking one social science comparison with sociology. This year they have focused on sociology and political science. We are going to come to that question. But if you see, there are few social sciences, they were generally compared with sociology, like political science, psychology, anthropology, then history, and then economics, and few more. So now if you see 5-6 social sciences are there, they have appeared consequently every year, at least one of them is there in the question paper. Now what is my responsibility as a future, let's say, aspirant who is going to write a mains examination? Can I make these 5-6 topics one-page note? और जब मैं ये one-page note बना के रखूंगा, believe me, 10 marks are now fixed. ये 10 mark तो आपको कोई नहीं हिला सकता. And these marks are whenever you are trying to attempt any questions. Suppose it is a 10 marker or a 20 marker. If we talk in percentage term, if you are getting more than 50% marks, you are scoring in a good way. If you are reaching to 60% and above 60%, there you are scoring excellent mark. So out of 10 marks, if you are scoring 6+ marks, then you are scoring an excellent mark. It is increasing your score above the most of the people who are giving exams. Just try to correlate it with the total tally. 500 mark optional is there. If you score 300 marks, you are either topper or very near to the topper. Compare with the last year, 313 marks ka topper is sociology. So if you are scoring 300 marks and plus, so you are equivalent to the topper.
and it is going to increase your tally into total mains marks. Very important. But it cannot happen that कि कुछ question में मैं out of marks लेके आऊंगा और total tally ऐसे नहीं होगा. So consistently you have to score mark in each question. Some questions shall be there where you are able to score more than 60% of mark. ये उस टाइप के questions है. इसमें आपको सिर्फ अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर करना है. Preparation of notes becomes very important here. Believe me, because you might be referring to several different types of material. Particularly जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास नोट्स हम जिसको बोलेंगे, या प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मटेरियल मिलेगा, येलो बुक्स बोल सकते हो उसको, या you might be reading Essential Sociology by Nitin Sarwar. So these things are with everybody. Now we have to understand this, isn't it? Now how I can be better than every other person who is writing an examination? Then you need to go little beyond that to get more and more points. Now you need not to get more point in the sense कि 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड ही लिखेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप 1500 वर्ड लिख के आ जाए, ये not expected. But whenever you are writing something, how you are dividing your answer into which area and how you are coming to that answer, which is very very important. Political science and sociology का अगर एग्जाम्पल लेंगे जो इस साल के क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो we can see how these two disciplines are, let's say, different from each other, and how these disciplines are collaborating with each other or correlating with each other. ये दो आपके प्राइमरी उसमें डिस्टिंक्शन चाहिए. उसमें भी आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट मैटर के बारे में क्या क्या है. Then subject which is a study aspect of that particular subject, और उसमें आप बता सकते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी, and then some of the scholars and area on they have studied. इन 3-4 एस्पेक्ट के ऊपर 2 एरियाज में आप डिस्टिंग्विश कर के बता सकते हो कि लेट्स से फॉर अ डिस्कशन पर्पस पॉलिटिकल सोशियोलॉजी is also a sub branch of political science. In the very same sense, we can say sociology of politics is also studied in sociology. This is where these two disciplines are coming together. For an example, study of voting behavior is done in political science also as well as in sociology also. Some of the scholars are common in both the areas. For an example, if you see the theory of authority and bureaucracy given by Max Weber is also relevant in political science, with some way how the theory of authority has origin. And आप समझ रहे हो? So this is how you need to bring thinkers into your answer. जितना ज्यादा thinkers answer में लेके आ जाओगे, you will be scoring good marks. Now some of our students who have appeared for the mains और अभी last हफ्ते में मिलके जा रहे हैं, those who have appeared in a good way, जिनका अच्छा attempt है, तो बोल रहे कि in some of the questions they were able to bring 5, 6, 7 thinkers. In at least 4 thinkers they are bringing into each question. जहाँ पे भी possible है 3 to 4 thinkers minimum they are bringing into every question. आणि ओढून काढून नहीं है. This is also very important. खींच तान के नहीं लेके आ रहे. They are trying to connect it to the theory. Understood? कैसे कर रहे हैं? तो देखो, इसके कुछ questions लेंगे जैसे जैसे डिस्कशन में आएगा और मैं आपको बताऊंगा why this is the most easiest part in your syllabus. और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी आपको यहाँ पे हो सकता है. It is very important. आपका स्कोरिंग हो ना हो बाकी लोगों का होगा, तो कंपैरेटिव एडवांटेज लेना या डिसएडवांटेज लेना ये स्टूडेंट के ऊपर वहां पे डिपेंड कर. अरे समझ रहे हो? देन कम्स अदर पार्ट्स ऑफ सिलेबस. ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है. नाउ लेट्स सी, जनरली व्हेनेवर आई टीच स्ट्रैटिफिकेशन इन द क्लासरूम, आई जनरली से दैट आफ्टर थिंकर्स, इफ वी टॉक अबाउट वन इंडिविजुअल टॉपिक, सिर्फ एक टॉपिक के बारे में अगर आप बात करोगे ना, तो दिस इज द टॉपिक जहां पे सबसे ज्यादा आपको वेटेज एग्जामिनेशन देगा. देखो प्रूव किया उन्होंने 50 मार्क्स का वेटेज. अरे सही है, सही है. नाउ वी हैव टू गो इनटू पेपर 2 आल्सो. साइमल्टेनियसली पेपर 1 पेपर 2 का सोचेंगे तो आप देखो ये जो 3 चीजें हैं ये भी हमारे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के साथ ही कनेक्टेड है. इन पेपर 2 आप देखो इसका वेटेज क्या यहाँ पे भी उन्होंने अराउंड 70 मार्क्स का वेटेज दिया है. सही है. यू कैन आल्सो ब्रिंग सोशल एंड रूरल एंड एग्रीरियन स्ट्रक्चर इज आल्सो वेरी अलाइन्ड विद दिस टॉपिक, बट उसको थोड़ा सा पेपर 2 के लिए अलग रखें. तो क्या हम बोल सकते हैं
इफ यू प्रिपेयर द स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक वेरी वेरी कीनली, तो पेपर 1 में 50 मार्क तो आप पकड़ लो, क्योंकि देखिए एवरेज 50 ही, एवरेज इज 50 मार्क्स। 2021 में 60 है, 22 में 40 है, 23 में अगर 50 है, तो वी आर सेइंग लेट्स से 50 मार्क्स एवरेज इज देयर, एंड यू कैन सिंपली यूज दैट नॉलेज टू अंडरस्टैंड पेपर 2। जब पेपर 2 में आप कास्ट सिस्टम पढ़ते हो, ट्राइबल सोसाइटीज पढ़ते हो, सोशल क्लासेस पढ़ते हो, आपको स्ट्रैटिफिकेशन का नॉलेज बहुत यूज करता है। इवन इन द अदर टॉपिक्स ऑल्सो, जेंडर में और आगे के टॉपिक्स में भी यूज करता है। बट वी आर लुकिंग एट द मार्क्स टुडे ओनली। आज हम लोगों को सिर्फ कितने मार्क्स एलोकेटेड है उसके बारे में ही बात करना है, और इस मार्क्स को हम लोग हमारे मार्कशीट में कैसे लेके आएंगे, यही हम लोगों को समझ। कंटेंट तो हम लोग हर रोज बात करते हैं, इन एवरी लेक्चर वी आर मीटिंग एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेंट। क्या हाँ, सिलेबस में 15 पॉइंट्स है ना पेपर 2, दिख नहीं रहा है तो नो इशू, आई विल शेयर इट ऑन टेलीग्राम चैनल, डोंट वरी, ठीक है। सो व्हाट एवर यू नीड, जस्ट लेट मी नो some of the things, like these things I am going to share on the telegram channel also. You are all on the telegram channel, na? Huh? Shivaji Kale Sociology is the name of telegram channel. So don't worry, after the lecture I am going to share these documents, some of these documents with you on the telegram channel. You can go through them by sitting at home. Just try to go through them one by one, try to understand them. I will be also trying to bring some of the answers for you. So model answer, generally I do not use the word because वेबर साहब का हम लोगों के पास आइडिया टाइप का कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, बट वी विल से दैट सिनॉप्सिस ऑफ दिस आंसर्स आई विल, सम ऑफ देम आई विल ट्राई टू शेयर विद, ठीक है। तो डोंट वरी, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अंडरस्टैंड करो, ज्यादा कुछ लिखने का भी जरूरत नहीं, आज सिर्फ समझ लो। हर रोज हम लोग बहुत लिखते हैं क्लास में बैठ के, आप रूम में बैठ के, स्टडी रूम में बैठ के बहुत लिख रहे हो, आज समझो कि कैसे पढ़े, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है ना, ओके। देखिए तो समझेंगे कि वेटेज किसके लिए। तो 100 मार्क्स अगर मैं पहले 3 टॉपिक्स में लेके आता हूँ, तो थिंकर्स आर गोइंग टू गिव सम क्वेश्चंस टू मी और स्ट्रैटिफिकेशन आर गोइंग टू गिव सम क्वेश्चंस टू मी। बट ये क्या, ये सारे सेक्शन ए में आएंगे, पेपर 1 के सेक्शन ए में आएंगे। तो सेक्शन ए इज पेपर 1 का सेक्शन ए, इट जनरली वेरी इजी फॉर स्टूडेंट टू अटेंड। और इसीलिए देखो, ये बात आप समझना कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इन सेक्शन ए, 5 6 7 8 इन सेक्शन बी, सही है। क्वेश्चन ए में 5 10 मार्कर से जो कंपलसरी, क्वेश्चन 5 में 5 10 मार्कर से जो कंपलसरी, तो इसको लिखना ही है। बट अभी हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो चॉइस होगा वो होगा जो बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन है उसमें से कौन से 3 क्वेश्चन में सिलेक्ट करना। चलो मैं चूजिंग क्वेश्चन 2 3 4 और 6 7 8 में से कौन से 3 क्वेश्चन में सिलेक्ट करूंगा। तो जनरली इट हैपेंस द स्टूडेंट्स आर अटेम्प्टिंग 2 क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन 2 3 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन वो लोग सेक्शन ए में से अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने जो पढ़ी होती है उसमें से उसके ऊपर क्वेश्चन आए होते हैं, राइट। बट इसमें दूसरी चीज आप समझो, हमेशा ये ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे प्रिपरेशन लैगिंग है कंपेयर टू कि कहाँ पे प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो जनरली इट हैपेंस दैट पीपल आर स्किपिंग some of the topics in paper in the section 2 of paper 1. For an example, students skip this topic, work and economic life. Now this is very easy topic if you pay attention, but बहुत सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं आता। बट बिलीव इंटरेस्ट को आप मारो बोली, क्योंकि जो मार्क्स देगा वो इंटरेस्ट देगा, नहीं देगा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मार्क्स मिल रहे हैं तो हम लोग वहां पे जाएंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे। और बिलीव मी, अगर आप डिसाइड करके नोट्स बनाओगे ना तो इसके 5-6 पेजेस के भी नोट्स नहीं बनेंगे। फाइनल नोट्स की, मैं माइक्रो नोट्स की बात करूं, और इसके ऊपर 4-5 प्रकार के हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मोर द क्वेश्चंस आर नाउअडेज बिकमिंग अ डायनामिक क्वेश्चन। किसी करंट अफेयर्स के इशू के साथ उसको कनेक्ट करके या टीचर के साथ कनेक्ट करके वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप जरूर पक्का तैयार करना। अनदर टॉपिक दैट जनरली स्टूडेंट let's say give less importance in preparation is system of teaching, क्योंकि थोड़ा सा कैसे उसमें ना थोड़े से फैक्चुअल एरिया ज्यादा है।
कि कोई थिंकर आ रहा है, वो अपनी उसके एरिया से बता रहा है कि नॉर्थ इंडिया में कैसी किनशिप है, साउथ इंडिया में कैसी किनशिप है, कोई आके बता रहा है कि इसका मैरिज सिस्टम के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस हुआ है. And now, because this is also highly connected to family and marriage system, the dynamic questions are coming more in the sense, especially in general studies paper 1 of Indian society, you are finding also dynamic questions appearing here. Now, यहाँ पे क्या हो जाता है? Students are knowing about it because they are studying in GS also, they are studying in sociology also. But while writing an answer, they are not bringing sociological content to it. They are writing good points. Their argument is good, their points are good, but sociologists, case studies, books are missing. That is not giving them an age as compared to other students. तो 10 मार्क करें तो एवरेज आप पॉइंट अच्छे लिख के आए तो 3 मार्क आएंगे. सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, बुक रिव्यू नहीं है, उनका कोई रिलेशन नहीं है, आर्गुमेंट नहीं है, तो 5 मार्क, 5.5 मार्क, 6 मार्क लाना डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड जनरली यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मैं तो बढ़िया लिख के आया था, मैं तो पूरे पेजेस भर के आया था. दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट जनरली मेंस के बाद जब लोग मिलने आते हैं, स्टार पेपर भर दिया, कई जगह बचे थे, मार्क्स देने के लिए तो रखी थी ना. ये इम्पोर्टेंट कॉलम में तो नहीं लिख के, वो नहीं लिखना तो बढ़िया. कंटेंट लिखना ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है. आई एग्री, दैट इज व्हाट आई विल टेल यू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर द अपकमिंग टेस्ट सीरीज. उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा कि जो लोग ऑलरेडी वो हैव कवर्ड देयर सोशियोलॉजी लास्ट ईयर, उसके पहले, एंड दो आर प्लानिंग फॉर 2024, तो आप सब लोगों के लिए वी हैव अरेंज द टेस्ट सीरीज. द टेस्ट सीरीज कॉल्ड एज सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज फ्रीडम मॉडल, राइट. और उसमें हम लोग 10 टेस्ट लेंगे, जिसमें से फर्स्ट 8 जो टेस्ट है वो सेक्शनल टेस्ट है, तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस डिवाइड किया है उसमें, और उसमें पूरा सिलेबस 8 टेस्ट में आपका कवर किया. पेपर 1 के 4 टेस्ट, पेपर 2 के 4 टेस्ट, राइट. और उसको करते समय भी हम लोगों ने कैसे किया कि जो कोरिलेटेड टॉपिक है उसको साथ साथ में लिया, तो आपका पढ़ाई भी उसके साथ होना अपेक्षित है तुमसे. द लास्ट 2 टेस्ट आर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, so they will be full syllabus, full length test of 250 mark. But the earlier 8 tests, they are sectional test, they will be divided into few part of syllabus, let's say 2 to 3 points, and they will be 120 mark test. ठीक है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे अप्रोच किया कि we are trying to cover most of the PYQs in that topic which are important for upcoming examination. तो वो भी आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, and some questions that we are trying to define which will not be PYQs but may be important for upcoming 2024 ka examination. Just for a discussion purpose, recently Nari Shakti bill was introduced, women reservation bill. Now definitely there is going to be question on 2020 in 2024 in some way or another way. Now it is our responsibility to put our mind into it कि क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. तो एक सिंपल है कि एक तो जेंडर इश्यूज के ऊपर आएगा कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से एनफॉर्मेट होगा कि नहीं, जेंडर इक्वेलिटी आएगी नहीं, तो ये बेसिक आर्गुमेंट है. बट देन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड सोशल चेंजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं. वो पूछ सकते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस दो कि पहले हुआ है कि नहीं, कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करोगे, व्हाट इज द सोशियोलॉजिक्स व्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. तो ये सारा थॉट प्रोसेस दिया जाएगा और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में डाले जाएंगे. So if you are joining sociology test series which is starting on 15th of October, मतलब next Sunday से शुरू हो जाएगा, और उसमें आपके PYQ की प्रैक्टिस हो जाएंगे, और उसके आप में अपकमिंग जो 2024 के लिए करंट बेस्ड डायनामिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसके लिए भी उसमें क्वेश्चन डाले जाएंगे. Now yes, we have a schedule for it. Almost every week we have scheduled a test. So you are supposed to write the test on the given day, which is also available in online offline format. तो ऑफलाइन मतलब आप यहाँ पे आ सकते हो, क्लासरूम में बैठ सकते हो, बैठ के भी आप टेस्ट लिख सकते हो, सबमिट करके जा सकते हो. इफ यू वांट टू डू इट ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब क्या, यू विल बी गिवन एन एक्सेस टू पोर्टल, एकेडमी के पोर्टल पे, तो आप एक क्वेश्चन पेपर आएगा, आप घर में बैठ के लिख सकते हो, वो स्कैन कॉपी आप अपलोड कर दो, इवेल्युएट हो जाएगा, इवेल्युएटेड कॉपी भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. एंड आफ्टर द इवेल्युएशन we are keeping 1-to-1 sessions. 1-to-1 session मतलब क्या, आपका कॉपी इवेल्युएट हुआ, then I will be available to you, then we can meet, we will allocate certain time to you, we'll meet, we'll sit together. If you are here in Pune, come to office, we'll sit in the
cabin. We'll discuss it one-to-one. Or those who are offline, we can have a phone call or we can arrange a video conferencing. So Teams का call arrange कर देंगे, depending on the availability or otherwise. But we will have a one-to-one discussion. Now, believe me, this is more important than watching a recording of a discussion that people can do. तो आपको इसका synopsis तो मिलेगा ही. Let's say model answer, which is a very favorite one. तो टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर आपको मिलेंगे, इवेल्युएटेड कॉपी मिलेगा, उसके बाद में 1-to-1 सेशन करेंगे. दिस इज द 3 स्टेज प्रोसेस. उसमें सबसे 0 स्टेज वाला है कि आप आके टेस्ट, तो टेस्ट लिखेंगे तो ये सारी चीजें आगे बढ़ेगी. तो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आप सिर्फ टेस्ट को एडमिशन लोगे तो आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, आप सिनॉप्सिस लेके पढ़ोगे तो आपका पढ़ाई होगा. बिलीव मी, होगा पर उतना नहीं होगा जितना लिखने से होगा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 0 स्टेज जहां से शुरुआत ही होने वाली, that is what you shall come and write the test. और ये अगर आप उस टाइम पीरियड में लिखोगे तो इन 3 months टाइम पीरियड, दैट इज मिड ऑफ अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर एंड तक आपका टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगा. तो 2.5 months are the months where you will be consolidating your optional subject. और ये आप थोड़ा सा लंबा प्लान के हिसाब से सोचो. Those who are appearing for 2024, कितने लोग हैं ऐसे यहाँ पे 24 के लिए अपेयर कर, right? Most of them, right? So now you people will start your prelims preparation generally in the month of January. सही है क्या? And now it will depend. किसी लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो थोड़ा जल्दी शुरू करेंगे दिवाली के बाद. किसी का सेकंड अटेम्प्ट है, लास्ट ईयर प्रीलिम अच्छा दिया है, कुछ 1-2 मार्क्स से गया है, तो थोड़ा बाद में शुरू करेंगे, मे बी इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी. किसी का सीसेट वीक है तो बोलेगा भाई रिस्क नहीं लेने का, पहले शुरू करो. किसी का सीसेट अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, शहीद नहीं होना है, तो बाद में शुरू करेगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स. नाउ यू कैन डिटरमाइन कि अगर आपको 1 दिसंबर से शुरू करना है, 1 जनवरी से शुरू करना है या 1 फरवरी से शुरू करना है. बट ऑन एन एवरेज से 1 जनवरी से तो प्रीलिम शुरू करोगे. दिस इज एन एवरेज बेस्ड. लेकिन उसके पहले मेंस कंप्लीट हुआ है क्या, ये जानना बहुत जरूरी होता है. बिकॉज if you are very much confident with your mains preparation, especially your optional, क्योंकि GS मेंस में से कुछ पार्ट तो प्रीलिम के साथ भी पढ़ोगे. जब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये साइंस, ये सारा पढ़ते रहोगे तो ये पॉलिटी का पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा, बट उसके साथ साथ मेंस का भी तो प्रिपरेशन चलेगा. बट ऑप्शनल को नहीं हाथ लगाओगे तो ये 4-5 महीने का गैप तो होने वाला है. तो उससे पहले ऑप्शनल बहुत अच्छी तरीके से कंसोलिडेट होना चाहिए. और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग कंप्लीट होना चाहिए, फुल सिलेबस का. आपके नोट्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग आपके कंप्लीट होने चाहिए. और उसका एटलीस्ट एक बार आपका पूरा टेस्ट सीरीज लिखा होना चाहिए. और उसके लिए अभी आपके पास 2.5 months आर अवेलेबल विथ यू. हाफ ऑफ द अक्टूबर, देन नवंबर एंड दिसंबर. उसी हिसाब से वो टेस्ट सीरीज बनाया है कि 24 के लिए जाने वाले लोगों के लिए है. जो लोग 25 के लिए जाएंगे बट नाउ दे आर ऑलरेडी कवर्ड देयर सोशियोलॉजी, दे हैव स्टडीड इट वंस, वो भी दे सकते हैं. दे विल हैव अ मल्टीपल यूज नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट ईयर में जाके उसका और भी फायदा होगा. नाउ यू हैव टू डिसाइड, इवन दोज हु आर डूइंग द क्लास राइट नाउ बट 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाउ यू हैव टू टेक योर ओन कॉल. अगर आप थोड़ा सा पुश करके सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो, क्लास के साथ पढ़ सकते हो, तो देन यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर ओन विल. बट जो ऑलरेडी जिनका क्लास हुआ है उन लोगों को तो करना ही करना है, आपका चॉइस है. बट यूपीएससी ने चॉइस नहीं रखा है टेस्ट सीरीज लिखने को, दैट्स व्हाई यू आर सेल्फ. सही है? अरे अंडरस्टूड हो गए? तो बेसिक समझा है देखो कि प्रिपरेशन करते हुए कौन कौन से एरियाज को करना है. नाउ ये देखो इस साल इन्होंने अच्छा सा वेटेज दिया है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी. तो लेकिन यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी को कम वेटेज दी. सही है क्या? तो now we need to also think कि पेपर 1 और पेपर 2 भी डिजाइन करते हुए कुछ लॉजिक लगा है. तो ऐसा नहीं कि पेपर 1 में पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे, पेपर 2 में भी बहुत क्वेश्चन पूछे. जिन्होंने वो पार्ट तैयार किया उनका बढ़िया हुआ, उनका लाइफ जिंदा लाना हुआ. और जिसका पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी जिसने ठीक से नहीं किया था उसका तो लाला झिंगा हुआ. तो ऐसे यूपीएससी नहीं करेगा, बैलेंस रखेगा. देखो और एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एन एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सोशल चेंज वाला जो क्वेश्चन है इसको 30 मार्क्स का वेटेज है. यहाँ पे अगर आप देखोगे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मींस सोशल चेंज ओनली, तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन. ये एरिया देखना, जनरली दिस एरिया
स्टूडेंट्स डिड नॉट प्रिपेयर वेरी वेल फ्रॉम पेपर 2। कौन सा वाला? पॉपुलेशन डायनामिक्स का। बट इसको देखो वेटेज कितना है, इट्स अ 40 मार्क्स वेटेज। बिलीव योर क्वेश्चंस भी इजी है, राइट? जब हम लोग देखेंगे तो आप समझोगे। नाउ सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये एरिया देखो। नाउ दिस इज अगेन कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी फ्रॉम पेपर 1, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, ये कंसेप्ट आप पढ़ोगे जिसका सोशल मूवमेंट के साथ रिलेवेंस है, तो उसको वेटेज दिया है। पर ये सारे क्वेश्चन आपको डायनामिक दिखेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछा है। एंड दैट इज हाउ सोशियोलॉजी इज इवॉल्विंग। तो आप जब आज घर जाओगे तो 2023 का क्वेश्चन पेपर आप लेके बैठोगे, एंड प्लीज ट्राई टू कंपेयर इट विद द PYQs बिफोर 2017-18 के पहले के PYQs के साथ कंपेयर करो। स्ट्रेट फॉरवर्ड PYQ जैसे 2013 में आ रहे थे, 12 में आ रहे थे, वैसे PYQs नहीं आ रहे। Forget about before 2010 and also forget about before 2000. So before 2000, before 2010, what straightforward question are? Social action 10 marks. सही है? Participatory observation 10 marks. Discuss the theory of social system by type person 20 marks. ये आते थे क्वेश्चन कुछ सालों के पहले, 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले। अभी ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में नहीं दिख रहा है। तो दोस्त who are only focusing on PYQs, कुछ मॉडल्स है मार्केट में जो आपको बोलते हैं 400 क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी हमारे साथ सॉल्व करो, वो सारे PYQs लेके आ रहे हैं, राइट? कोई अच्छा है कोई बुरा, इसकी बात नहीं, क्या वो रिलेवेंट है? आपको बहुत सारे लोग दिखाएंगे कि ये 400 PYQs हम लोग आपको देते हैं, उसमें यही सारे PYQs है, पुराने वाला 2013 के पीछे वाले, 2017 के पीछे, आप पहले वाला, बिकॉज वो लिखने में भी इजी है, बनाने में भी उन लोगों को मॉडल आंसर इजी है, चेक करने में भी इजी है, स्टूडेंट को लिखने में भी इजी है। तो सब लोगों को ऐसे लग रहा है कि अरे लाइफ तो बढ़िया चल रहा है, बट जब एग्जामिनेशन में जाओगे ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं, तब टेंशन आएगा और बाहर फिर गाली देते आ जाओगे उस इंसान की, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? तो हम लोगों को एग्जामिनेशन के साथ चलना पड़ेगा। तो हमारे टेस्ट सीरीज में ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं। आई विल आल्सो ट्राई टू शोकेस यू सम ऑफ द कनेक्शन विद कि जो यूपीएससी का क्वेश्चन आया है और जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में डाला था लास्ट ईयर की मेंस की टेस्ट सीरीज में, फ्रीडम मॉड्यूल में, आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, इससे कहीं ना कहीं पे वो क्वेश्चन आया है और उसके साथ हम लोग उसको कनेक्ट करके आई विल शो इट यू ऑन द स्क्रीन कि ये क्वेश्चन, और आपको क्रॉस चेक करना है तो यूनिक एकेडमी की वेबसाइट पे जाओ, ये सारे क्वेश्चन पेपर वहां पे अपलोडेड है, आपको डेली दिखेगा कब अपलोड किया था, राइट? तो वहां पे आप देख सकते हो, मैंने जो क्वेश्चन नंबर बोला, पेपर नंबर बोला, वो आपको क्वेश्चन वहां पे मिलेगा, राइट? तो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी इनटू द प्रिपरेशन, एंड आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप भी इसका फायदा एग्जामिनेशन के लिए उठाओ। अरे सही है, तो चलो पेपर 1 से शुरू करते हैं एंड देन वी विल मूव टू पेपर 2 इन आवर फर्दर डिस्कशन। तो पेपर 1 में देखते हैं, सेक्शन 1 में देखो शुरुआत में ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो पहला देखो क्वेश्चन क्या आया है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आया है, फेमिनिस्ट मेथड कैसे अलग है than other research methodology they are simply trying to focus on. Now you will see in the earlier papers, जिसको हम लोग थोड़ा सा ओल्ड पैटर्न नहीं बोल सकते, बट लेट्स से 5 साल पहले का जो पैटर्न है, 5 साल पहले के पैटर्न में आपको फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने कभी नहीं पूछे, बिकॉज दैट वाज नॉट वेरी प्रोमिनेंट मेथोडोलॉजी इन सोशियोलॉजी। यस, इट वाज वन ऑफ द मेथोडोलॉजी, बट हमेशा आपको पॉजिटिविज्म के ऊपर मेथड या इंटरनेशनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा दिखेगा, या पॉजिटिविस्ट वर्सेस नॉन पॉजिटिविस्ट की डिबेट पूछी हुई दिखेगी। यू ट्राई टू गो थ्रू द PYQs, यू फाइंड योर डिसीजन। बट देखो अभी क्या पूछा है, सिर्फ उन्होंने स्पेसिफिकली या सिंपल ऐसे भी नहीं पूछा है कि डिस्कस द फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी एज अ रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिस्टिंग्विशनेस ऑफ फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी। अरे आप समझ रहे हो? तो आपको कंपेयर करके बताने की बाकी लोगों से कैसे अलग है। तो सबसे पहले तो आपको फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी पता होना चाहिए, बट अंडरस्टैंड दिस, उन्होंने फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी क्या है ये नहीं पूछा है। बहुत सारे लोग लिख के आएंगे कि फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी क्या है, उन्होंने पूछा है हाउ इट इज डिफरेंट देन द अदर मेथोडोलॉजीज, उसका अलग तरीके से कैसे उसको देखा जाता है। तो उसमें आपको कुछ पॉइंट आएंगे जैसे कि इंटरसेक्शनल एबिलिटी, मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, ऑब्वियसली जेंडर, स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो
मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर, 3 जेंडर देखे जाएंगे सोसाइटी में। तो थर्ड जेंडर बिकॉज द साइज इज वेरी स्मॉल, इफ यू सी डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 genders primarily, you will find out female as a gender is a weaker gender or a marginalized gender। तो हमेशा हमको दिखता है कि उनका कभी बात ही नहीं किया गया। तो जब हम लोगों ने कार्ल मार्क्स पढ़ा था, देखो लेट्स गो बैक टू द वेरी बेसिक्स, वी हैव क्रिटिसाइज्ड कार्ल मार्क्स थ्योरी एज अ जेंडर ब्लाइंड थ्योरी। अरे सही है क्या? तो कैन वी से मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव वाज नॉट फोकसिंग ऑन फेमिनिस्ट let's say viewpoint, and now when feminists are coming back later period में, मतलब बहुत भी ज्यादा नहीं, लेकिन फ्रेडरिक एंगल के has tried to bring the gender perspective into conflict perspective, और बाद में बहुत सारे न्यू मार्क्सिस्ट भी आए, उन्होंने तो बोला दुनिया में सबसे पहला क्लास जो बना होता मेल एंड फीमेल, have and have nots में सबसे पहला जो क्राइटेरिया था जिसके ऊपर क्लास बना, that was gender, male and female, male became have, female became have when we started the concept of agriculture। तो फ्रेडरिक एंगल बताएंगे आपको as the concept of private property arose, कहाँ से शुरू हुआ? एग्रीकल्चर से शुरू हुआ। एग्रीकल्चर इज कनेक्टेड टू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो वहीं से शुरू हुआ हैव एंड हैव नॉट का कंसेप्ट। तो यस मटेरियलिस्टिक कंडीशन तो है ही है, बट जेंडर है, तो ये किसी ने देखा ही नहीं था। तो जस्ट गिविंग यू एन आर्ग्यूमेंट हाउ यू शैल बी थिंकिंग इट टू कनेक्ट टू द टॉपिक। बट देखो रिफ्लेक्सिविटी का कंसेप्ट है ना, जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा है उन लोगों को उसके बारे में पता होगा। क्वालिटेटिव एंड पार्टिसिपेटिव मेथड्स, इसके बारे में आप बता सकते हो। चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिविटी के बारे में बता सकते हो, एंड देन यू कैन ब्रिंग टू द सेवरल पॉइंट्स। नाउ यहाँ पे we'll try to bring certain sociologists and scholars into answer. Now this is a kind of an ideal answer, तो इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट दिखेगा। We are not strictly following the word limit here. We are trying to bring more content to you for the purpose कि अगर next time 24 में 25 में इस तरह का अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, some of the time they are directly repeating the questions from the previous year, some of that they are trying to bring the area on which they have formulated the question earlier, वो area लेके तो थोड़ा बहुत बदल के पूछ रहे, so this content is going to help. Understood? Now let's focus on question number 2 जो हम लोगों ने already discuss किया है, relationship between sociology and political science। तो इसका अप्रोच समझो, कंटेंट तो आपके साथ भी नहीं है, तो अप्रोच आप समझो कि मुझे पढ़ाएंगे ऐसे करना है, तो 5, 6, 7 सोशल साइंसेस है, उसका मैं नोट्स बना के रखूंगा, एंड आई विल यूज दैट नोट्स फॉर माय प्रिपरेशन, और उसको मैं टैबुलर फॉर्म में अच्छा सा बना के रखूंगा। जो कॉन्ट्रास्ट है वो टैबुलर फॉर्म में लिखूंगा, जो सिमिलरिटीज है वो मैं पॉइंट फॉर्मेट में लिखूंगा। तो देखो रिप्रेजेंटेशन आल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर आंसर राइटिंग। सी यू हैव अ कंटेंट विद यू, ये अगर हम लोगों ने मान लिया तो आगे बढ़ेगा, आगे जो पॉइंट बढ़ेगा वो अबव एवरेज कैसे जा सकते हो, तो हाउ यू विल रिप्रेजेंट योर कंटेंट इनटू योर आंसर। तो ये उन्हीं के लिए डिस्कशन है जिनके पास कंटेंट है, जिनके पास कंटेंट नहीं है तो यू फोकस ऑन द बिल्डिंग कंटेंट फर्स्ट, बट ये बनने के बाद भी सेकंड जो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो जनरली यू विल फाइंड आउट क्लास में मैं कुछ आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसमें मैं बोलता हूँ कि इसमें टैबुलर फॉर्मेट आप यूज करो, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको डायग्राम यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर टाइलकास्ट पर्सन आ रहे हैं तो डायग्राम आना ही चाहिए। अरे आप समझ रहे हो ना, कहीं पे आप फ्लो चार्ट्स लेके आ सकते हो, कहीं आप पॉइंट फॉर्मेट यूज कर सकते हो, बट लार्जली इट इज अ थंब रूल दैट यू शैल राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। अरे आप समझ रहे हो, तो जनरली आपका आंसर जो है यू शैल यूज अ पैराग्राफ फॉर्मेट, ऐसे फॉर्मेट बोलो उसको, टू राइट एन आंसर। जहां जरूरत है वहां आप अलग अलग चीजें लेके आओगे, फ्लोचार्ट भी ला सकते हो, पॉइंट फॉर्मेट ला सकते हो, टेबल ला सकते हो, और बाकी चीजें भी आप लेके आ सकते हो, डायग्राम्स फॉर एन एग्जांपल जहां पे भी। अंडरस्टूड ना? तो इसके रिलेटेड देखो, अगर इसको हम लोग सोशियोलॉजी के साथ कनेक्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ इट इज कनेक्टेड। तो यही क्वेश्चन आया था, तो देखो जो यूपीएससी का क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है, और ये हमारे टेस्ट सीरीज का software sociology and political science. Question number 7 in sociology test series 2021 test series का थर्ड टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 7A ये क्वेश्चन हम लोगों ने पूछा। And generally what we do, those who are joining our test series, we also ask them to go back to our previous test series also and just go through the question paper. उसको भी पढ़ो, उसको भी अपने पढ़ाई में इंक्लूड करो। तो अगर आप एक बार टेस्ट सीरीज लगाते हो, एक पूरा साल 3 टेस्ट सीरीज अलग अलग हम लोग कंडक्ट करेंगे,
एक साल अगर आप पूरी 3 टेस्ट सीरीज मेरे साथ सोशियोलॉजी के करते हो, स्टार्टिंग विद फ्रीडम मॉड्यूल अभी का, देन आंसर राइटिंग प्रोग्राम इन द मंथ ऑफ जनवरी फेब्रुआरी, एंड देन द मेंस टेस्ट सीरीज इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। तो ये 3 बार टेस्ट सीरीज होगा सोशियोलॉजी का। तो आप जनरली जो लॉन्ग टर्म से प्लानिंग कर रहे हो, तीनों भी टेस्ट सीरीज लिखते हैं, एटलीस्ट 2 लिखते हैं। तो जो भी ये 2 से 3 टेस्ट सीरीज करेंगे, इनके ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो देखो आगे जाते हैं। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रामेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ए बाबू, अरे याद है, ये दुनिया एक रंगमंच है। अरे सिखाया था क्लास में, और हम सब क्या है, इस रंगमंच की कठपुतली। यही बोल रहे थे ना एपिन गॉफमन, उनका तो फोटो भी दिखाया था मैंने क्लास में पढ़ाते। ठीक है, लास्ट ईयर दिस ईयर। अरे याद आ रहा है? राइट, टोनी का ड्रामेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है। किसके साथ जोड़ेंगे इनको? अरे डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का कंसेप्ट है, रोल प्लेइंग का कंसेप्ट है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म का किसने दिया है? मेरे साहब ने दिया। उनके साथ और भी एक स्कॉलर थे, चार्ल्स कूले, लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो ये 3-4 लोग एक साथ हमेशा याद रख सकते हो। पढ़ते समय भी 3-4 लोगों को हमेशा साथ में पढ़ने का, तो वी कैन यूज द डिफरेंट कंसेप्ट हियर एंड देयर। तो इसका तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था आपको क्लास में, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन और भी आया है। तो ड्रामेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आप क्या करते हो? फॉर एन एग्जांपल, यू आर अपीयरिंग इनटू द इंटरव्यू, तो आप वहां जाके ड्रामा तो करके आते हो। ड्रामा का मतलब नॉट ड्रामा इन नेगेटिव सेंस, यू आर प्लेइंग अ रोल नाउ, क्योंकि आप व्हेन यू आर सिटिंग इनटू एंड इन द इंटरव्यू हॉल, द पैनल इज आस्किंग यू क्वेश्चन। सपोज यू आर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, then what you will be doing? Now you are not a district collector today when you are sitting in that examination hall, right? But then you are assuming a role कि हाँ मैं ये हूँ, and then you are giving an answer. या हम लोग जब देखते हैं politicians who are trying to build their image, they are also using this dramatological perspective. PR, जो आप ये बोल सकते हो, PR जिसको बोलते हैं, पर्सनल रिलेशंस, क्या बोलते हैं उसको? पब्लिक रिलेशंस। तो उसमें भी ये होता है, स्पेशली सेलिब्रिटी मैनेजमेंट का। कॉमन पब्लिक में कैसे देखते हो? सोशल मीडिया में आप देखो, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर पीआर ओनली ना। अरे आप आपका एक इमेज पब्लिक में बनाने की कोशिश करते हो, तो सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट आप कर रहे हो, फोटोज डाल रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, या इमेज डाल रहे हो, राइट, या पोस्ट लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, दिस इज हाउ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड योर सोशल इमेज। तो ये है ड्रामेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। नाउ दिस क्वेश्चन वाज नेवर आस्क्ड इन द अर्लियर ईयर, पूछा है कभी? तो यही सोशियोलॉजी करता है। और क्या हमारे हम जो एक लेक्चर लेते हैं, सोशल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, ये लेक्चर लिया था हम लोगों ने, उसमें सारे पर्सपेक्टिव देखे थे क्या? इसमें हम लोगों ने पर्सपेक्टिव देखा था? देखो, दिस इज द एरिया विच जनरली पीपल डू नॉट टीच इन द क्लास, और दे डू नॉट आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस पेपर, बट वी आर टीचिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ एरियाज आल्सो कवर इन क्लासरूम. So if you go to the paper 1 and paper 2, believe me, almost 90% of the questions or the weightage or the marks that are allocated are either from our classroom teaching or from our class notes or from our test series. इन तीनों को अगर मिलाओगे तो I will say that 95% of the questions you can attempt from our let's say whatever different types of content that we have built in our over the period of time. अरे आप समझ लो, राइट? तो देखो आगे जाते हैं, ड्रामेटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो उसका आंसर आपको बड़ी डिटेल में दिया ही है। इंप्रेशन मैनेजमेंट क्या है, रोल स्क्रिप्ट क्या है, सोशियोलॉजिस्ट के व्यूज क्या है। तो देखो चार्ल्स कूले साहब के बारे में मैंने अभी आपके सामने बताया था। एवरीडे लाइफ का अंडरस्टैंडिंग आप कैसे उसके ऊपर से डेवलप कर सकते हो, ये सारी बात इसमें हम लोगों ने दी। अंडरस्टूड? लुक एट अनदर क्वेश्चन, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी किसका है? रॉबर्ट मर्टन, राइट? तो ना देखो, ये तो अपने सिलेबस में वैसे के वैसा दिया होगा, बट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर आप 5, 6, 7 साल के पहले का क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, बट ये ऐसे दिखेगा, रेफरेंस ग्रुप थियरी 10 मार्क्स, सिंपल थियरी पूछा। तो उसमें फायदा क्या है कि wherever you are getting your notes, wherever you are reading through the books, you will get a very standardized notes और एक्सप्लेनेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप थ्योरी की। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी इन्होंने दिया, कहाँ से उसका ओरिजिन है, कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे, फिर रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या है, और कौन कौन से टाइप्स के रेफरेंस ग्रुप होते हैं, इंडिविजुअल रेफरेंस ग्रुप के बीच में क्या रिलेशनशिप।
पहले एक दो थिंकर के साथ उसका कंपैरिजन, एक दो थिंकर उसको क्रिटिसाइज। बहुत सिंपल फॉर्मेट। लेकिन देखो आगे क्या पूछा। अब ऐसा सिंपल नहीं पूछा, उन्होंने आपको क्या दिया है, एक उन्होंने फोकस एरिया दिया है, ये सिर्फ इस फोकस एरिया के बारे में ही बताओ, बाकी चीजें मुझे मत बताओ। फॉर एन एग्जांपल उसका यूनिवर्सल एप्लीकेबल मॉडल आप डिफाइन करो। क्योंकि क्या है इसमें एक लॉजिक है, क्योंकि जब रॉबर्ट मर्टन अपना थ्योरी बनाते हैं ऑफ रेफरेंस ग्रुप मॉडल, ठीक है, संदर्भ समूह थ्योरी जेव्हा ते बनवतात, at that time he is actually trying to criticize in one way theory developed by Talcott Parsons. He is trying to develop a grand theory of social system which will explain everything in the society. But he is saying no, we cannot study whole society because it is very dynamic, it is changing societally, the differences are happening. So let's try to study for that छोटा सा middle range theory का concept उन्होंने बात किया। और उसमें वो बोलते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी अ इंडिविजुअल द वे लेट्स से मैक्स वेबर हैज डन, और लेट्स से these GS Mill is doing, who study the actions of social individual or gesture of social of an individual. इतने माइक्रो लेवल पे भी नहीं जाऊंगा, नॉट आई एम गोइंग टू स्टडी इट एट अ मैक्रो लेवल, जैसे कि दुर्की पढ़ रहे सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन, या टलकट पर्सन पढ़ ले पूरा सोशल सिस्टम। I am going to study it in the middle level. तो मिडल रेंज थ्योरी, इसीलिए ना इंडिविजुअल ना सोसाइटी, सोशल ग्रुप की बात करते हैं। अगर आप समझ गए तो पहला तो यही पे लॉजिक आना चाहिए। तो रेफरेंस ग्रुप की जब बात करेंगे तो इंडिविजुअल रेफरेंस ग्रुप के साथ क्या रिलेशन बना है, पार्ट चाहता है उसमें वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ इट, और क्या मेंबर्स उसको बना के लेंगे सोशल ग्रुप वाले, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, क्या नॉर्म्स होंगे, क्या वहां पे जाने के लिए आपको कुछ गोल अचीव करने पड़ेंगे, उसको अचीव करने के लिए कुछ मीन्स अवेलेबल है, आर दे इंस्टीट्यूशनल मीन्स, स्ट्रक्चरल गोल्स कुछ थ्योरी के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो यही सारा लिखना है विद रिलेवेंस टू द कंटेम्परेरी टाइम। और इसको लिखना कैसे है, तो देखो नाउ देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, आप इलस्ट्रेट करो, एक्सप्लेन करो, और क्वेश्चन मार्क भी दिया है, तो आपको चॉइस है। You can say reference group theory is universally applicable. Yes, it is applicable. You can go with that flow. You can say no, it is not applicable. You can go with no, it is not applicable. You can explain that particular thing. And then you can also have the third option. You can say yes, applicable in certain sense. No, not applicable in certain sense. And then you can conclude by looking at इसको आप जाना पकड़ जरूरी। Yes, it is applicable in universal sense in this particular aspect of society. Now, third aspect is generally a better aspect because here you are doing a balanced view और आपके पास पॉइंट भी ज्यादा लिखने को होंगे। अरे समझ रहे हो, एक कोई भी साइड पकड़ोगे तो आपके पास पॉइंट भी कम होंगे लिखने को, एंड देयर मे बी अ केस दैट कि दूसरा वाला बाजू रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, दैट इज व्हाट एग्जामिनर विल से, दिस कैंडिडेट इज नॉट मीट द अदर साइड ऑफ द डिस्कशन। सो जनरली आप ऐसे क्वेश्चंस में दोनों साइड को भी पकड़ सकते हो, बट you have to look at from the question that thinker's point of view। ऐसा नहीं कि आप आपके मन से लिख रहे हो, राइट? तो देखो कैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे इट मे नॉट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल बिकॉज क्या है, कल्चरल वेरिएशन। तो जो रेफरेंस ग्रुप का कंसेप्ट है क्लासरूम में हम लोगों ने डिस्कस किया ना, व्हाई यू आर सिटिंग हियर टुडे, अरे बताओ इसके साथ कनेक्ट कर, आईएएस बनना है तो आपका रेफरेंस ग्रुप कौन है, IAS government officer is your reference group and that's why to get there you are sitting here, सही है। बट यही कंसेप्ट अगर अमेरिका में बोलते तो हाँ रेफरेंस ग्रुप अलग है, उसमें कुछ यूथ का, अमेरिकन यूथ का रेफरेंस ग्रुप अलग है, उसको क्या बनना है, हाँ उनको बनना है मार्क जुकरबर्ग, उनको बनना है एंटरप्रेन्योर बनना है, एप्पल का फाउंडर जैसे बनने, या जो भी नए नए स्टार्टअप्स बनते, they are this is their reference group or their let's say role model उनका बनता है। तो कल्चर चेंज हो गया, सोसाइटी चेंज हो गया, रेफरेंस ग्रुप का कंसेप्ट भी चेंज हो जाएगा, ग्रुप डाइवर्सिटी भी। नाउ यू हैव सेवरल ग्रुप्स व्हिच यू आर रेफरिंग टू, अरे सही है कि नहीं? तो दिस इज आल्सो चेंजिंग। तो रॉबर्ट मैककर्टन उसके बारे में बोलते हैं कि कैसे उसको रिलेटिव डेप्रिवेशन के कंसेप्ट के साथ रेफरेंस ग्रुप का कंसेप्ट जोड़ोगे, you will have a lot of different things happening in front of you, but जिसके साथ आप खुद को रिलेटिवली कंपेयर करके डिफरेंट फील करोगे,
there you want to get a membership of that group, and that's why you will be trying to go through the certain means available, maybe institutional or अगर available नहीं है तो non institutional means आप choose करोगे, and then you will adapt to that particular situation. ये आप बताओ. But in certain sense, yes, it is also applicable, contextual होता है. आप सोशल चेंज में पढ़ सकते हो कि ग्रुप एक कास्ट ने दूसरे कास्ट को अपना रेफरेंस ग्रुप माना, तो संस्कृताइजेशन प्रोसेस का एग्जांपल दे सकते हो, या इंडियन लोगों ने ब्रिटिश लोगों को रेफरेंस ग्रुप माना तो वेस्टर्नाइजेशन का एग्जांपल दे सकते हो, एंड यू कैन से यस इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. अच्छा, और उसमें आप कुछ केस स्टडीज का भी एग्जांपल बता सकते हो कि यस, जो वेस्टर्नाइजेशन प्रोसेस है that is happening globally, isn't it? And not only in India, but it is also happening in most of the Eastern societies where they are trying to copy the Western ideas, practices, ritual. So, yes, reference group का theory universal भी आप applicable कर सकते हो. अरे समझे? तो देखो कैसे लिखना है, that is very very important. आज आप कंटेंट पे ज्यादा फोकस मत करो. कंटेंट आपके पास नहीं है, believe me. आपको ये इंपॉर्टेंट है कि ये कंटेंट में कैसे यूज करूं एग्जामिनेशन हॉल में, राइट? या एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कंटेंट मुझे यूज करने के लिए आना चाहिए. फॉर दैट पर्पस व्हाट आई शैल बी डूइंग, तो आई शैल हैव सम गुड कंटेंट विद मी, काइंड ऑफ अ रॉ और हाफ प्रोसेस कंटेंट व्हिच आई कैन यूज इट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स. और उसके लिए मुझे लगेगा प्रैक्टिस, राइट? तो फॉर एन एग्जांपल मैं बिरयानी का एग्जांपल देता हूँ, बिरयानी बनाने के, राइट? तो बिरयानी बनाना इज नॉट अ 1 hour जॉब. कुछ लोग बोलते हैं 1 घंटे में बनता है, नहीं, उसके लिए प्रिपरेशन बहुत पहले से करना पड़ेगा. पहले तो अच्छा चावल लेके आना पड़ेगा, फिर दिन अच्छा मीट लेके आना पड़ेगा. जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर या अच्छा मीट लेके आना पड़ेगा, राइट? देन आपके पास अच्छे मसाले होने चाहिए, राइट? तो आप तो जाके दुकान से कोई भी रेडीमेड लेके आ सकते हो, पर अगर माँ ने बनाया घर का मसाला है तो उसकी टेस्ट अलग है. तो मसाले बनाने का जो टाइम है, दैट इज द टाइम, दैट मींस यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स. तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ गुड बिरयानी. तो ये इंग्रेडिएंट आप जमा करके रखो. जिस दिन एग्जामिनेशन जाना है उस दिन भाग दौड़ के फिर तो स्विगी से ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर वो अच्छा है कि नहीं आएगा, व्हाट इज अ लक का फैक्टर. तो ऐसे नहीं करना है. एग्जामिनेशन हॉल में जाके ये वाला ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते, क्योंकि बिरयानी अच्छा नहीं लगा तो आप घर पे मैगी बना के खा सकते हो. बट एग्जामिनेशन हॉल में अगर पेपर में बिरयानी अच्छा नहीं बना तो लाइफ का मैगी बन जाएगा. दैट्स व्हाई वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन. और इसीलिए सब लोग थोड़ा सा उसके ऊपर काम करेंगे. तो नोट्स इज योर रॉ मटेरियल दैट यू आर कलेक्टिंग. बट सिर्फ रॉ मटेरियल होने से काम नहीं चलेगा, वो भी सही है ना. तो देखो, सारा रॉ मटेरियल आपको वही दिया जो आपकी मम्मी यूज करती है, लेकिन जो मम्मी बिरयानी बनाती है वैसे बिरयानी हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते. क्यों? अरे उसका प्रैक्टिस है ना. वो रेसिपी कैसे डिजाइन हुआ? बिकॉज शी हैव डन इट सेवरल टाइम्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स. शी हैव लर्न बारीक बारीक छोटा छोटा सा चीज कि कौन सा चीज कब करना है, कितना नमक डालना है, नमक पहले डालना है या पहले तीखा डालना है, कितना ऑयल डालना है, ये सारा चीज उसको पता है. नाउ दिस विल ओनली कम विद द प्रैक्टिस. So raw material is not your practice, means you are writing the test. Believe me, answer writing मत बोलो कि मैं 2 आंसर लिख के लेके आया, मतलब वो तो चावल उबाल के लेके आया. 2 आंसर लिखने से कुछ नहीं होगा. You need to sit at least write 1 to 1.5 hour in a straight way. तभी राइटिंग प्रैक्टिस होगा. अरे आप समझ रहे हो? और कुछ एरिया डिफाइन करो कि हाँ ये पूरा टॉपिक, लेट्स से आई विल रीड फर्स्ट 3 थिंकर्स एंड देन आई विल अपीयर फॉर द टेस्ट. तो वो होगा रियल प्रैक्टिस. ऐसे नहीं है कि मैं कार्ल मार्क्स में से हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ा, उसके 3 पेज के लिए और लिखे. वो तो बहुत शुरू के टाइप का प्रैक्टिस है, वो भी करना होगा, बट बहुत शुरू में जब आपकी क्लास चल रही है, पहली बार पढ़ रहे हैं. बट नाउ वी आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट व्हाट एग्जामिनेशन वांट. तो अगर ये फ्रीडम मॉडल सोशियोलॉजी का टेस्ट सीरीज लेके अभी 120 मार्क्स का टेस्ट लिखने का अगर अभी कैपेसिटी डेवलप हुआ, then only after the prelims, when you will get for mains का test series in the month of June, July, August, you will be able to write 250 marks का answers. ठीक है? It does not happen directly, believe me. यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो लोग सोशियोलॉजी का टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं 2022-23 से लिख रहे हैं, और लोगों को आप एक्सपीरियंस पूछो बाद में चाय पिलाने के लिए लेके जाओ,
तो जब उन्होंने पहले टेस्ट लिखा, बिलीव मी, उनको आउट ऑफ 120 मार्क्स में से आ ही रहा था 90 मार्क्स का, और इसमें से लिख के हुआ 50 मार्क्स, राइट। तो मुझे आ रहा है 90 मार्क्स का, फिर भी मुझे 50-60 मार्क का ही लिख के होगा। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, समझ रहे हो। तो आपको बिरयानी बनाने के लिए 4 घंटे, साफ सफाई करने के लिए 8 घंटे, ये सारा काम मम्मी 1.5 घंटे में कर लेती है। व्हाई? बिकॉज शी इज नाउ प्रो। तो हम लोगों को भी प्रो बनना है, बिरयानी बनाने में नहीं। बनना आपका चॉइस है, हम लोगों को प्रो किस में बनना है? सोशियोलॉजी में, टेस्ट लिखने में। तो रॉ मटेरियल मीन्स नोट्स आपको सब लोगों को बनाने हैं। And second thing very important is you need to do a real life practice means basics, ठीक है। तो देखो, बाउंड्री बिटवीन एथनिसिटी एंड रेस इज ब्लर्ड। क्या ये मैं क्लास में बोला था ये क्वेश्चन आएगा? क्या मैंने इसके रिलेटेड सोशल प्रिज्म डाला था? अरे सोशल प्रिज्म ऐसा कुछ डालते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो नए लोगों के लिए तो आप सिर्फ उसको कंटेंट की तरह यूज करो। जो लोग ऑलरेडी टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो सोने से खाने से ना। हैव आई गिवन यू अ सोशल प्रिज्म कॉल्ड एज एथनिक वायलेंस इन इंडिया? रिसेंटली मणिपुर वायलेंस के ऊपर डाला था क्वेश्चन, और जिसको भी सर्च करना है, दे कैन गो ऑन द टेलीग्राम चैनल राइट नाउ एंड दे कैन गो इन द सेक्शन मीडिया में, जाओ फोटो देखो, फोटो क्लिक करो, आपको डेट भी दिखेगा कब डाला है। इफ यू हैव दैट कंटेंट यू कैन राइट अबाउट दिस आंसर। But question is directly on the syllabus. Ethnicity भी syllabus का point है और race भी syllabus का point है. Contemporary events are happening where Manipur violence is happening, where both race का concept भी है और ethnicity का concept. But they are not connecting it too much to current affairs. Traditional knowledge होगा तो भी आप लिख सकते हो. But yes, Manipur violence happening, Manipur violence is happening. इसका सिंपल मतलब है इस साल एथनिसिटी पे, रेस पे, एथनिक वायलेंस पे पक्का क्वेश्चन आएगा। ये मैंने क्लास में बताया क्वेश्चन आए, और इसीलिए तो उस प्रेडिक्शन के हिसाब से तो सोशल प्रिज्म का वो नोट बनाया था, विच आई हैव अपलोडेड ऑलरेडी ऑन टेलीग्राम चैनल। वो आप देख सकते हो, प्रीलिम ये मेंस के बहुत पहले उसको अपलोड किया गया है, राइट। तो इसको आप यूज कर सकते हो। देखो आगे यहाँ पे उन्होंने पूछा है, डू यू थिंक एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें भी आप ले सकते हो, यस आई थिंक बाउंड्री लाइन इज गेटिंग ब्लर, या नेक्स्ट में जाके आप कंक्लूजन में उसको लिख सकते हो कि आई एग्री विद दिस। तो फर्क समझा क्या किया है? पहले क्वेश्चन में मैंने बोथ साइड से लिखा था कि रेफरेंस ग्रुप यूनिवर्सली एप्लीकेबल है क्या, नहीं है, है। और कंक्लूजन में लिखा था कि कुछ चीजों में है, कुछ चीजों में नहीं। या तो मैंने लिख दिया नहीं, अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरा नाम नहीं होगा वहां पे, राइट। आई विल टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स और सम ऑफ द थिंकर्स, थियरीज, केस स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट स्कॉलर्स, और मैं लिखूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये रूल्स को अगर मैं फॉलो करूंगा तो यस, एथनिसिटी और रेस के बीच में का जो बाउंड्री है दैट इज गेटिंग बर्ड। आर्यन द्रविडियन इंडिया का एग्जांपल, द्रविडियन, एंड देन वी से तमिल्स, व्हाट इज इट? ethnic identity. So can we say simply South India is a racial identity, mostly connected to race, and Tamil is a racial plus ethnic identity. तो क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक एग्जाम्पल तो आप देखो, इसको आप बहुत अलग अलग तरीके से भी रख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन यू टॉक अबाउट, अगर नो लिखना है तो उसका भी एक एग्जाम्पल देखो। So when you are talking about North Indian, yeah, Aryans, you can take a lot of examples including Punjabi, but यहाँ पे ethnic identity is more strong as compared to racial identity. Being Punjabi is a stronger identity, ethnic identity है as compared to, let's say, North Indians or Aryans or other race. अरे आप समझ रहे हो? तो आपको डिसाइड करना है कौन से एंगल से लिखना है, जिसका कंटेंट आपके पास अच्छा होगा वो पॉइंट ऑफ व्यू आप वहां पे लगा सकते। सही है, देख आगे से। ना ये क्वेश्चन है, आयरन लॉ कॉलिंग गांधी और विल्बर फैल्टर्स ने। ना ये नया चीज शुरू किया है यूपीएससी, और ये से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आगे भी दिखेंगे। क्या कर रहे हैं, दो थियरीज को एक साथ लाते हैं, इंक्रीजेस द चैलेंज, कॉम्प्लेक्सिटी, एंड लोगों को एनालिटिकली थिंकिंग करने के लिए वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको फोर्स करें। आप जाओ और पीवाईक्यूज में इसको थोड़ा 5-6 साल पहले के क्वेश्चंस के साथ कंपेयर करो, तो आपको सिंपल क्वेश्चन आया होगा
will build a Pareto's theory of lion and foxes. This CW means theory of कौन सा है? पावर इलेक्ट्रिक, सही है ना? वही है क्या? नहीं है, अरे याद है ना? CW मीन्स याद है ना? लोग ऐसे देख रहे हैं तो नहीं सर, जो हमारी पोल बोल रहा था, ठीक है, कोई बात। तो देखना है क्या ऐसी कुछ CW है अपने नोट्स में भी है, ठीक है, थोड़ा सा लिखो प्रेशर। तो किसी एक दिक्कत के ऊपर रॉबर्ट आपको बोलेंगे प्लूरलिज्म का थ्योरी बताओ, तो एक दिक्कत पूछा, उनका थ्योरी पूछा, यहाँ पे उन्होंने बोला दो थ्योरीज, उसको एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या कर सकते या नहीं कर सकते, ये भी आपको पूछा, तो आपको स्टैंड भी लेने के लिए बोला। तो इसके लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, पहले तो इंडिविजुअली दोनों की थ्योरीज पता होनी चाहिए, एंड देन हाउ यू कैन कंपेयर एंड कनेक्ट देम, वो लिखना इज अ ग्रेट चैलेंज। तो बिलीव मी, सिर्फ थ्योरी पता होने से नहीं चलेगा, इवन यू नो बोथ द थ्योरीज, आपने उसको बहुत बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी किया है, बट इन द एग्जामिनेशन हॉल दीज क्वेश्चंस आर मेड टू वेस्ट योर टाइम, अगर आप प्रिपेयर अच्छी तरीके से नहीं करें, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा, फिर हर पॉइंट के बाद आप सोचोगे फिर लिखोगे, सोचोगे फिर लिखोगे। नहीं, यू सिंपली ट्राई टू कैलकुलेट द टाइम जो आप थॉट प्रोसेस में लगा रहा है, हर पॉइंट के बाद अगर आप 2, 3, 4 सेकंड भी सोचते हो, बहुत कम टाइम है ना, 2, 3, 4 सेकंड, पर आप सोचो ना, आपने अगर 7-8 पॉइंट लिखे और हर क्वेश्चन के बाद लेट्स से पॉइंट के बाद आपने 4 सेकंड सोचा है, तो कितना टाइम हुआ? 40 सेकंड। मैं इसमें 40 सेकंड क्या है जिंदगी के 40 लेकिन इसको जोड़ो ना, आपको लिखने 19 क्वेश्चंस, कैलकुलेशन इजी करते हैं फॉर डिस्कशन पर्पस 20 क्वेश्चंस, तो 20 क्वेश्चंस इनटू 40 सेकंड्स, अरे कितने बन जाएंगे? 800 सेकंड। तो मतलब कितने मिनट्स? अरे कितने मिनट्स? अरे अराउंड 30 मिनट्स प्लस 20 सेकंड, सही है क्या? तो आप देखो सोचने में कितना टाइम चला गया, 30 मिनट्स चले गए। इसका मतलब क्या है, एक 10 मार्कर लिखने के लिए आपको 7-7.5 मिनट मिल रहे हैं, मतलब उसके 2 10 मार्कर्स, मतलब 20 मार्क्स का आपका अटेम्प्ट नहीं होने वाला इस पेपर, इवन इफ यू आर राइटिंग विद योर फुल एफिशिएंसी, बिकॉज यू आर गिविंग टाइम टू थिंक। आपका 20 मार्क का पेपर एक पेपर में बचेगा, दूसरे पेपर में 20 मार्क नहीं अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका 40 to 50 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं होगा। क्या कुछ समझे? या ऐसे थॉट दिया है अभी कि मैं 3-4 सेकंड सोच रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं 50 मार्क्स का आउट ऑफ 500 मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मींस आई एम ओनली अटेम्प्टिंग 450 मार्क्स आउट ऑफ 500। बिलीव मी, दिस इज द फर्स्ट फेज वेयर यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। 450 में से आप स्कोर लेके आ जाओ, और कोई है जिसको 500 में से स्कोर लेके आना, तो किसको एडवांटेज? 500 वाले। उल्टा ऐसे होना चाहिए कि पेपर लिखने के बाद मेरे 5 मिनट बचे, ये तो सबको लग रहा है तो आइडियल स्टेट है, यस पॉसिबल। अपने जो मेंस देके आए हैं इसमें जो स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छा अटेम्प्ट दिया है, उसमें से कुछ लोगों के तो पेपर 10 मिनट पहले खत्म हो चुका था, so they able to finish their question answers all of them into 2 hours and around 45 minutes। फिर 5-7-8 मिनट उन्होंने कुछ एक पॉइंट है जहाँ पे जगह छोड़ी थी बाद में लिखने के लिए, वहां पे जाके पॉइंट ऐड कर रहे, ये सब चीजें वो 15 मिनट करते हैं, तो ये सारी चीजों की वजह से मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये सारा सोचो, कंटेंट आपके पास है, कंटेंट लाना इज ऑल अबाउट योर हार्डवर्क नाउ। मैं तो दे चुका हूँ, आपको पढ़ना है, but how to bring that content into your answer book or answer sheet, it is all about the practice that you need to, okay? आगे चलते हैं, क्वेश्चन समझेंगे। ये देखो, what is historical materialism? देखो पहला सिंपल क्वेश्चन आया है, ये ऐसे लग रहा है ना, और लोगों के चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल आ रहा है, ये मुझे पता है, ये पता है, ये मैंने प्रिपेयर किया। तो देखो यूपीएससी ऐसे ही कर रही है, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, देखो ऑलरेडी यू हैव गॉन थ्रू 6 क्वेश्चंस जो एक्चुअल में चैलेंजिंग उन्होंने बनाए हैं, डायनामिक बनाए, तो इसमें तो आधा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन हो गया जिसका प्रिपरेशन है उसका। तो ये क्वेश्चन तक आते समय तक तो उसने सोच ही लिया है मन में कि इस बार तो मेरा हो नहीं रहा है, और उसके मन में चल रहा है कि अभी घर जाके मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए घर वालों को कैसे कन्विंस करूं, और विशेष व्यक्ति को क्या क्या झूठ सुनाऊं।
दैट हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड इनटू देयर माइंड। तो ये आपका एफिशिएंसी कम करेगा। लेकिन इसमें भी देखो अलग टाइप से उन्होंने डायनामिज्म लाया है, रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेम्परेरी सोसाइटी। अरे क्या ये हम लोगों ने क्लासरूम में डिस्कस किया था? सेकंड क्लास हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या हुआ इसमें? हो गया। चलो थोड़ा सा आई थिंक कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, बट विल कंटिन्यू। I will tell you the question. And the name of the question is what is historical materialism and examine its relevance in understanding the contemporary society. तो ये थोड़ा सा सुना सुना लग रहा है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, कार्ल मार्क्स पहला टॉपिक, ठीक है। बट आगे भी उन्होंने और पूछा है क्या, रिलेवेंस इन द कंटेम्पररी सोसाइटी। तो क्या हर क्वेश्चन का हम लोगों ने ऐसे डिस्कशन किया था कार्ल मार्क्स में? तो कार्ल मार्क्स से बात भी कर रहे हैं कि क्या क्लास स्ट्रगल आज की डेट में रिलेवेंस है, क्या क्लास का कंसेप्ट आज की डेट में रिलेवेंट है, क्या सोशल फैक्ट सोसाइटी आज की डेट में रिलेवेंट है, क्या रिलीजन के जो फंक्शन दूर की पता थे आज की डेट में रिलेवेंट। ये क्वेश्चन आगे भी आए हैं, आपको दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर। तो ये जो क्लासरूम में बैठने के बाद व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग एंड ब्रिंगिंग द डिस्कशन टू कंटेम्पररी एनालिसिस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो डिबेट एंड डिस्कशन का जो स्किल होता है, ये आपको खुद को भी डेवलप करना पड़ेगा। Now in our question, in our classroom sessions, we will do it. Also, after writing the test series, when you will meet one-to-one, we will do it. But at the same time, you should have a group of 3-4 people. Minimum 2-3 लोगों का आपका ग्रुप चाहिए, सोशल ऑप्शनल वाले, और जो आपके फ्रीक्वेंसी के साथ भी मैच करते हैं, जो आपके साथ जैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं, इक्वल लेवल पर पता चल रहा है, तो उन लोगों के साथ बैठ के भी आप ये सारा डिस्कस कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल अभी टेस्ट सीरीज हो गया, आपने भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा है, रूम पे जाओगे, सिनॉप्सिस लेके बैठोगे, अच्छा सर ने ये दिया है, सिनॉप्सिस में ये 3-4 पॉइंट मुझे अच्छे लगते हैं, तुमने क्या लिखा था? जब ये आंसर तुमने लिखा था तो तुमने किस अप्रोच के एंगल की कौन सा अप्रोच उसमें फाइंड आउट किया था, अप्लाई करने की कोशिश की थी। नाउ दिस डिस्कशन इफ यू आर हैविंग, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट, ठीक है। तो पहले तो आपको लग रहा होगा कि अभी मैं रूम पे जाके ग्रुप ही बना लूंगा व्हाट्सएप पे, तो आई विल प्रिपेयर द बिगेस्ट सोशियोलॉजी ग्रुप, 1.5 लाख लोगों से बिलीव मी, 2 लोग ढूंढ के दिखाओ जो अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं आपके जैसे। स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड आउट 2-3 पीपल, दे विल बी आल्सो सफिशिएंट। 2-3 लोग आपके जैसे सोचने वाले, आपके जैसे प्रिपेयर करने वाले अगर है तो भी आपके लिए बढ़िया है। अगर नहीं हो रहा है तो then that is going to be a challenge, ठीक है। But still we will try to find out 2-3 लोग, believe me they help a lot। और इससे बनने का ग्रुप सबसे फायदा कब होता है? जब आप बहुत शुरू के प्रिपरेशन में हो, तब अच्छा ग्रुप बनता है। और जैसे आप मेंस में जाते हो, इंटरव्यू में जाते हो, ये ग्रुप बहुत हेल्प करता है इन ऑल द केसेस। अगर आप सब साथ में मेंस में हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, हेल्प बहुत मिलेगी। आप में से कुछ लोग इंटरव्यू चले गए तो भी बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर ऐसा होता है कि आप 4 लोग हो, 2 लोग मेंस में चले गए, इंटरव्यू में चले गए, 2 लोग मेंस में रुक गए, फिर भी वो 2 मेंस वाले लोग हैं, वो इंटरव्यू वालों को बहुत हेल्प करते हैं इन देयर प्रिपरेशन। यहाँ पर आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम बीच में गड़बड़, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं ना, ये है इसमें, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल 2 लोग मेंस में नहीं क्वालिफाई हुए, 2 लोग इंटरव्यू के लिए चले गए, वो 2 लोग इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो समय ये 2 लोग इनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिलीव मी, उसमें उनका इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी क्वालिफाइड मीन्स जो इंटरव्यू में पहुंचे हैं लोग, उनको पता होता है कि क्या उन्होंने अलग किया है जो मेरे दोस्त को नहीं किया। तो दे विल शेयर विथ यू ऑल द थिंग्स बिकॉज यू आर ऑलरेडी क्लोज फ्रेंड। वैसे कोई नहीं शेयर करेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। टीचर विल शेयर विथ यू, बट टीचर के साथ आपको मिलने वाला टाइम और ग्रुप में आपके मिलने वाला टाइम, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आई विल गिव माय सच पॉसिबल टाइम टू यू जब रिक्वायरमेंट होगा, बट
having a group plays a great role in your preparation. But अगेन जैसे मैंने बोला कि 3-4 लोगों का ही होना चाहिए, 30-40 लोगों का होगा तो पढ़ाई छोड़ के बाकी चीजें उसमें सारी चलती हैं। अंडरस्टूड? तो ये सारा देखो, तो ये जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसे आपको रिलीजन के बारे में क्वेश्चन पूछा है इन आवर पेपर ओनली, तो दे आर आस्किंग कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रिलीजन इन कंटेम्पररी सोसाइटी और मल्टी और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन आपने पूछा है। नो क्या इसका आंसर लिख सकते हो आप, बताओ जरा। हाँ, टाइमिंग यहाँ से नहीं, फंक्शंस ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी ऐसे पूछा है, कंटेम्पररी सोसाइटी, डोमिनेंटी और कंसाइंस, ओके, और कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रमोट वैल्यूज इन इंडिविजुअल, ठीक है, तो इंटरनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, और निगेटिव फंक्शन पूछा है ना भाई, फंक्शन, हाँ, रिवाइटलाइजेशन, ओके, और तो ये सारे चीजें याद जो आ रही है, दुल्की साथ की चीजें याद आ रही है, सही है ना? यस, ठीक है। बट देखो क्या हम लोगों ने क्लासरूम में भी डिस्कशन किया था, यही तो क्रिटिसिज्म है किसके ऊपर, ऑन द थ्योरी ऑफ दुल्की, बिकॉज ही स्टडीज द रिलीजन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, नॉट इन द कंटेम्पररी सोसाइटी, राइट? तो आप सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे नहीं लेके आ सकते, तो सोशल ग्लू का काम करेगा, बट नॉट इन द कंटेम्पररी सोसाइटी, नॉट ऑल द कंटेम्पररी सोसाइटी। Within that group maybe cohesion का काम करेगा, but it will also develop communal tension, communalization का issue हो जाएगा। तो ये फंक्शन पूछा है, तो आप उसमें डिसफंक्शंस ज्यादा लिखने का, there is a, it shall not be written as a dysfunction, so जो हम लिखने की कोशिश कर रहे थे, तो that will give you dysfunctions, तो वो पूछा नहीं है आपको। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि within the social same religion में आप सोशल कोहेजन का काम करोगे, बट नॉट बी हैपनिंग विद द अदर थिंग, तो आप हमको सिविक रिलीजन का कांसेप्ट लेके आए। अरे कुछ समझ रहे हो? तो जब जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको उसका यूज करना पड़ेगा। तो आज से लेके जब भी आप कोई भी थ्योरी पढ़ोगे तो उसका कंटेम्पररी सोसाइटी के साथ क्या एनालिसिस कर सकते हो, ये उसको आपको करके ही रखना है। किसी भी चीज के रिलेटेड सोशियोलॉजी में क्वेश्चन पूछे गए। आगे देखते, नाउ लुक एट द कांसेप्ट, व्हाट आर वेरिएबल्स। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है, देखो टेस्ट सीरीज में भी पूछा है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछे। देखो व्हाट आर वेरिएबल्स, तो क्लास नोट्स में लिखा है, डिटेल में आपको सारा चीज क्लास नोट्स में दिया हुआ है, अपने इसमें दिया हुआ है। एंड बिलीव मी, दिस इज द पार्ट व्हिच यू कैन आल्सो फाइंड आउट द इंटरनेट। ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पार्ट है, ये आप जस्ट पुट इट ऑन द इंटरनेट, यू विल गेट सच अ गुड मटेरियल, नोट्स में है, बुक्स में है, बस आपको प्रिपेयर करना जरूरी है, राइट? नाउ आगे देखते हैं। Again, what are the characteristics of scientific method? Do you think that scientific method in conducting sociological research is foolproof? Now ये देखो टेस्ट सीरीज का कैसे बात कर रहा है, और यही क्वेश्चन हम लोगों ने भी पूछे, ठीक है? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? Does the scientific method make a sociology a science? Illustrate your आंसर विद दुल्किस। तो यही पूछा है, अगर आप ठीक से देखोगे तो क्या यही पूछा है, राइट? क्या इस टेस्ट का क्वेश्चन लिखने के बाद अगर आपको उसका इवैल्यूएटेड आंसर मिलता, उसके रिलेटेड सिनॉप्सिस मिलता, जिसको बैठ के आप दोस्तों के साथ एज वेल एज बाद में मेरे साथ डिस्कशन कर लेते, तो क्या ये आपका आंसर दिमाग में फिट हो जाता?
और अगर ये क्वेश्चन अपना रिफ्लेक्ट होता है पेपर में, तो क्या इसका बढ़िया आंसर आप लिख सकते थे? तो यस, इट वाज पॉसिबल, राइट। आगे चलते हैं। नाउ आगे का क्वेश्चन है, लेट्स से हाउ डू वी असेस द चेंजिंग पैटर्न इन किनशिप रिलेशनशिप। तो देखो मैं इसमें बहुत बढ़िया चीज है जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि सिस्टम ऑफ किनशिप फैमिली मैरिज, ये बात जनरली स्टूडेंट को इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता पढ़ने में, और उसमें ना बहुत सारी फैक्चुअल चीजें कि ये थिंकर इसके बारे में ये 5-6 पॉइंट बोलता है, इसमें 7-8 पॉइंट बोलता है, तो जनरली पीपल अवॉइड टू प्रिपेयर फॉर इट। बट बिलीव मी, इसके ऊपर आपको हमेशा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपको बताएंगे कि किनशिप सिस्टम क्या है, एक्सप्लेन करो, या कोई स्पेसिफिक थिंकर बोलेंगे इनके हिसाब से किनशिप सिस्टम, मैरिज सिस्टम, फैमिली सिस्टम एक्सप्लेन करो, या आपको बोलेंगे कि नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया का किनशिप सिस्टम कंपेयर करो, राइट, या इंडियन एंड वेस्टर्न किनशिप सिस्टम कंपेयर करो, या आपको सिंपल बोलेंगे किनशिप फैमिली या मैरिज, या तीनों में से किसी एक के रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, डायनामिज्म कैसे आ रहा है, पहले से जैसे नहीं रहा है, यही उसके डायमेंशन है। तो 3-4 डायमेंशन के आगे इसके क्वेश्चन जाते हैं। तो अगर ये प्रिपरेशन करना है टॉपिक का आपको, बिलीव मी, अगर आप बढ़िया सा नोट्स निकालोगे तो 5-6-7 पेजेस के ऊपर इसके नोट्स नहीं जाएंगे, एंड द बेनिफिट इज दैट दिस टॉपिक इज बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जब भी आप पॉइंट बना रहे हैं तो 2-4 वेस्टर्न थिंकर्स याद करना, 2-4 इंडियन थिंकर्स याद करना, 1-2 ऐसे थिंकर्स याद करना जो दोनों जगह पे यूज कर सकते। विल गिव एन एग्जांपल। तो फॉर एन एग्जांपल मेरे पास एंथनी गिडेंस है, मेरे पास फर्डिनांड टोनीस है, कुछ याद आ रहा है? हाँ, गेरमाइन शाह, गेजन शाह, अरे याद है, देखो एप्लीकेशन। मेरे पास एंथनी गिडेंस है, उसके साथ साथ मेरे पास इंडियन थिंकर्स भी है। आगे एक क्वेश्चन आया है जिसमें वो थिंकर्स दिए, जैसे कि मेरे पास ईरान कर्वे, which is a kind of an authority when you talk about kinship system in India, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कंपेयर करके पढ़ाते हैं, बहुत बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। एक पेज उनका नोट ही बना दो, रट्टा मार दो, कहीं ना कहीं पक्का है, गारंटीड है। क्या आपको पैट्रिशिया उबेरा नाम पता है? शी इज आल्सो अ सोशियोलॉजिस्ट हु हैज गिवन द, उनका बुक ही है फैमिली मैरिज एंड किनशिप इन इंडिया, ये बुक ही है उनका, राइट। तो उनके रिलेटेड भी मैंने एक सोशल प्रिज्म शेयर किया था बिफोर मींस, वो इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, और उसमें मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात किया था कि फैमिली मैरिज और किनशिप में पैट्रिया वगैरह का क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बिलीव मी, अगर वो आपने मेंस के पहले पढ़ा होगा और आप मेंस में गए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन लिखने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला जो 99% ऑफ द पीपल आर नॉट गोइंग टू राइट। और यही पॉइंट होता है जो आपको हर इंसान से 1 मार्क एक्स्ट्रा देके जाएगा, ठीक है। देखो तो मैंने क्या किया, देखो दिमाग लगाया, व्हाट आई हैव डन, आई हैव 3-4-5 थिंकर्स फ्रॉम द 3-4 थिंकर्स है वेस्टर्न सोसाइटी से, 2-3 थिंकर है मेरे इंडियन सोसाइटी से, 1-2 थिंकर ऐसे है जो दोनों जगह पे आप यूज कर सकते हो, पैट्रिशिया और गोरा, या आप दोनों जगह पे यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली स्टडीइंग इंडियन सोसाइटी, बट वेरी कंटेम्पररी थिंकर है, आज के जमाने की थिंकर है, तो आपको उसमें चेंजिंग ट्रेंड उसके बारे में लिखा जाएगा। यू विल फाइंड आउट इन पेपर 2 द सेम क्वेश्चन एज अपेयर्ड इन अ डिफरेंट वे, मैं आपको दिखाऊंगा, राइट। पहले देखो वेबर का ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन है, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पर थोड़ा सा उनने यूरोपियन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है। तो क्या हम लोगों ने ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म और मॉडर्न कैपिटलिज्म कंपेयर किया था? क्या उसमें हम लोगों ने ये दिखाया था कि मास प्रोडक्शन होगा जो ट्रेडिशनल में नहीं होगा, और उसके लिए क्या लगेगा? अरे इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन लगेगा, आप अपना हाउस बेस्ड इंडिविजुअल बेस्ड प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अरे वो पिन मैन्युफैक्चरिंग वाला एग्जांपल याद है? हाँ याद है, खिलाड़ी कंपनी से। तो नाउ हियर वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फैक्ट्री। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? अरे आपको लाना पड़ेगा ब्यूरोक्रेसी। तो वो ब्यूरोक्रेसी कैसे होगा? इट विल नॉट बी पर्सन ओरिएंटेड, तो करिस्मेटिक नहीं होगा। Now businesses are also not family run businesses like it used to happen in caste system. तो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा? लीगल रैशनल ब्यूरोक्रेसी होगा। तो यही तो आपको हिस्टोरिकली एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप से आपको कंपेयर करके लिखना है। तो देखो पॉइंट में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के बाद कैसे चेंज हुआ, मॉडर्न स्टेट का रोल क्या है? क्योंकि मॉडर्न स्टेट विल डिजाइन ये जो ब्यूरोक्रेसी बन रहा है,
This is also based on the concept of legal rational authority. सही है क्या? It will again come from the legal rational social action. और ये सब कौन बनेगा? In the modern state, it is also not monarchy, traditional नहीं है. It is not also individualist, charismatic नहीं है. तो कौन सा है? Legal rational है modern state. तो ये सारा value system आपको दिखेगा. And then you can connect it to other thinkers. देखो रॉबर्ट मिल्टन को भी आप इसमें लेके आ सकते हो. गोल डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट हम तो लिया है नोट मेकिंग में, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, नहीं तो ये लिख सकते हो. और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी का भी कंसेप्ट है, अगर जरूरत पड़ता तो यहाँ पे आप उसको यूज भी कर सकते हो. अरे समझ गए? तो ऐसे इसको लिखना था. आगे देखते हैं. कॉमन सेंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च. तो देखो इसको हमारे नोट्स के साथ कंपेयर करते हैं. देखो तो क्या यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ दिख रहा है. देखो the focal point of sociology rests on interaction. How do you distinguish it from the common sense? ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है और ये है हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन. तो क्या उसमें सिमिलरिटीज दिख रही है कुछ? तो क्या ये टेस्ट सीरीज अगर आपने दिया होता, कौन सा टेस्ट सीरीज है? ये मेंस का 2023 का टेस्ट सीरीज, टेस्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 सी. मतलब इतना मैंने आपको दिया है, जिसको जाके करना है चेक वो कर सकते हैं. मतलब ये टेस्ट हुआ होगा आई थिंक इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023 में टेस्ट हुआ था ये. जिसने लिखा, जो गया सितंबर में 2023 में मेंस लिखा, उसको इसका पक्का फायदा हुआ है. राइट, आगे जाते देखो. नाउ पॉवर्टी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉवर्टी इज अ फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन कैसे है और डिफरेंट डायमेंशंस कैसे है. तो उसके रिलेटेड तो देखो एक पीवाईक्यू भी हमारे यहाँ पे आया था और जिसको हम लोगों ने भी वापस किया था कि हाउ कैन वी इक्वेट पॉवर्टी विद पुअर लिविंग. और पुअर लिविंग मतलब क्या होता है? इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, बट डू राइट इट विद द गेटोइजेशन स्लम के एंगल से आप लिख सकते हो, या सेग्रीगेशन ऑफ सर्टेन सोशल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट. जैसे कि कास्ट में आप एक फैक्टर था, इन अर्बन सोसाइटी क्लास एक फैक्टर है और इसकी वजह से गेटोइजेशन होता है. तो देखो यही दिया है आपके आंसर में भी. राइट, तो देखो कैसे थिंकर्स लेके आए हैं कंसेप्ट ऑफ हाइपर गेटोइजेशन. तो स्लम का कंसेप्ट लिखा है सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में, पीयर इक्वालिटी का कंसेप्ट लिखा है कल्चरल कैपिटल में, अमर्त्य सेन का कंसेप्ट लिखा है कैपेबिलिटी अप्रोच. तो ये क्या है, ये ऊपर का मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये आपके सबके दिमाग में होगा. ये तो जनरल स्टडीज पढ़ने वाले लोगों के पास भी होगा ये पॉइंट्स सारे जो ऊपर के, क्योंकि जीएस में भी पॉवर्टी वाला पॉइंट है सोसाइटी. तो ये तो आप लिखोगे, इसमें मैं ज्यादा आपको क्या कंट्रीब्यूट करके बताऊं. बट ये 3 पॉइंट या इस तरह के 3-4 पॉइंट जिसके पास आएंगे उसके आंसर्स में हर जगह पे आधा मार्क्स बढ़ेगा और टोटल में 1.5 या 2 मार्क्स उसके बढ़ जाएंगे. अरे समझ रहे हो? तो ये आंसर में आना चाहिए. बिलीव मी, these are all the things that are in your notes already. एक है जो लोग 20 अभी के 23 के नहीं 22 या 21 के बैच के हैं, क्या आपके नोट्स में अमर्त्य सेन है ना? क्या आपके नोट्स में पीएलई वर्ड भी है? उस टॉकिंग अबाउट सोशल कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल. अरे एक्चुअली जीएस में भी ये पढ़ाया है. जीएस इंडियन सोसाइटी किया है ना मेरे साथ, इसमें ये बात किया. सिर्फ पीएलई वर्ड का नाम नहीं लिया वहां पे, क्योंकि जीएस में क्यों लेके आ सकते हैं, नाम नहीं जरूरत है, बट कंसेप्ट यूज कर सकते हैं. अंडरस्टूड ना? अभी आ गए देखो कंसेप्ट टोटेमिज्म एंड एनिमिज्म आगे. राइट, तो कंपैरिजन पूछा है, कंपैरिजन. इसलिए मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, अभी भी क्लास में भी देता हूँ, घर पे भी देता हूँ. तो ऐसे मस्त उसका कंपैरिजन लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बाद में जाकर हम लोग उसकी सिमिलरिटीज भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं क्या? और बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. नाउ सेक्शन ए के बारे में बहुत सारी बातें कर ली. नाउ लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट सेक्शन बी. यहाँ पे थोड़ा सा डायनामिज्म बढ़ेगा ना. आप सोचोगे ऑलरेडी पहले ही इतना डायनामिज्म था, अब क्या बढ़ाएंगे, बच्चे की जान लेंगे. बट दिस इज व्हाट यूपीएससी इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, यूपीएससी पहले वाला यूपीएससी नहीं है, इजी क्वेश्चन पेपर नहीं निकालता. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसीलिए जो भी पीवाईक्यूज आप लिख रहे हो पहले के लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू राइट द पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 5 years. सबसे इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन पेपर होंगे वो होंगे लास्ट 5 साल के,
Don't try to start from let's say 2001 से लेके मैं आगे के सॉल्व करूंगा नहीं, स्टार्ट फ्रॉम 2023 एंड पीछे पीछे चले जाओ। अरे समझ रहे हो, राइट? तो देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंपैरिजन विद एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो देखो इसमें तो आप सारे दिक्कत लेके आ सकते हो। पहले तो आप लेके आ सकते हो कि ये क्यों हुआ, उसको मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव बोलेगा, बिकॉज focus on surplus and profit generation resulting to environmental degradation by capitalists। बट लेकिन मैक्स वेबर क्या बताएंगे उसके बारे में? मैक्स वेबर बताएंगे कि नहीं नहीं, उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एथिकल मोरल वैल्यूज आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कैपिटलिज्म, है कि नहीं? अरे प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो वैल्यूज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो वो बोलेंगे कि नहीं, वैल्यू सिस्टम क्या बताता है कि नेचर इज कंसिडर्ड एज अ supreme, yeah, so something as a god in many of the cultures, including Indian cultures, including a lot of tribal cultures, right? तो उसमें क्या है, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो किसकी जिम्मेदारी है? सबकी जिम्मेदारी है, इंक्लूडिंग द कॉर्पोरेट्स आल्सो। तो वहां से कंसेप्ट आएगा कि कल्चर विल इन्फ्लुएंस इट। देखो यहाँ पे लिखा है, कंटेंट में सारा लिखा हुआ, रोल ऑफ इथिक्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके साथ साथ आप बहुत सारे नए नए पॉइंट्स भी लिख सकते हो। रॉबर्ट मर्टन का सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का कंसेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंटनी गिडन से उनका बहुत बढ़िया कंसेप्ट है डबल हार्मोनेटिक्स का, कि साइंटिफिक नॉलेज और पॉलिसी मेकिंग के बीच में लूप होना चाहिए, डबल हार्मोनेटिक्स वाला। एवी गॉफमैन है, इसको आप लेके आ सकते हो ड्रामाटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, देखिए कैसे यूज करने का। तो एक प्राइवेट एंटिटी, प्राइवेट कंपनी अपना इमेज सुधारने के लिए क्या करेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करेगा। तो कंज्यूमर को बताएगा कि आई एम एन ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ब्रिटिश पेट्रोलियम, तो मेरी वजह से ऑयल स्पिल हुआ मैक्सिकन सी में, बट मैं क्या करूंगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आई विल बी आल्सो कैप्चरिंग द कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो लोग मेरे प्रोडक्ट को क्या नहीं करनी चाहिए, पीपल शैल नॉट रिजेक्ट माय प्रोडक्ट, because society is becoming environmentally conscious with respect to environmental issues. The company who shows environmental consciousness, people will buy their product. इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ऑर्गेनिक वाला जो आर्गुमेंट आजकल सारी कंपनीज करते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू फूड प्रोडक्ट्स, कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ऑर्गेनिक है, या जो भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, बोलते कि दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। तो लोगों का एक विश्वास हो गया है कि अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो एनवायरमेंटल ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं बनाया, पीपल विल बाय इट मोर। तो दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ कॉर्पोरेट इमेज मैनेजमेंट का टेक्निक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर्बर्ट सेंसर्स उसको डार्विनिज्म के प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे कि जो सबसे फिटेस्ट है वो सर्वाइव करेगा। मतलब क्या, देयर विल बी सेवरल कंपनीज वर्किंग इन द सेम सेगमेंट, तो जो सोसाइटी के साथ चलेगा, मतलब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम करके अपने 4 पैसे वहां पे खर्च करेगा, वही लॉन्ग टर्म चलेगा। एंड दैट्स व्हाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का चार्ल्स डार्विन का कंसेप्ट, जिसको स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म के कंसेप्ट का साथ लेते हैं, कहीं पे याद आ रहा है पढ़ा हुआ, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में पढ़ा था बहुत शुरू में, तो वो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। अरे समझ रहे हो? तो देखो अगर जो भी पता है रेसिपी 4-5 स्टिकर लेके आते तो भी ये आंसर कंप्लीट होगा। नाउ ये देखो, ये जीएस का आंसर नहीं लिखा है, इसका आंसर लिखा है सोशियोलॉजी का आंसर लिखा है, और इसको हम पेपर में बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो अगेन सिविल सोसाइटी इन डीपनिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, आगे भी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फंक्शन डज रिलीजन प्लेज इनटू प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, ये हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। आप सब लोग मुझे दुर्खीम वाले फंक्शन बता रहे थे, बट इन प्लूरलिस्टिक सोसाइटी अगर पूछेंगे तो दैट इज अ डिफरेंट केस। तो नो डाउट वी कैन यूज सर्टेन फंक्शंस ऑफ दुर्खीम, बट वहां पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, आप आगे भी बाकी सारे लोगों की चीजें यूज कर सकते हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। और इसमें से कुछ लोग आपके रीडिंग ऑलरेडी आ चुका है रीडिंग में, कुछ लोग आपको पता नहीं होंगे, तो डू यूज दिस आंसर्स आल्सो एज टू इंप्रूव योर कंटेंट। तो इसमें से आप लेके उसमें डाल सकते। अंडरस्टूड? ये वाला क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि फैमिली प्रैक्टिस के बारे में किसी एक सोशल स्कॉलर के व्यूज पूछेंगे। हम ये क्वेश्चन कैसे है, एक तो आता है, नहीं तो नहीं आता है, इसमें कोई बीच का चीज नहीं है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस,
either you know it or you don't know। और पूछा भी कहाँ पे देखो कंपल्सरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डी, ये कंपल्सरी है, सबको लिखना है। अभी इसमें अगर मुझे नहीं आता है तो क्या करना, अरे क्या करने का, हाँ ऐसे पेज पे हाथ दीवार को बांधना पड़ता है, काही करायचं नहीं आता, नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। Now I am generally saying you, so आपका mains examination is also about trying to check your mental stability कितना है, टेम्परामेंट कितना है। ये क्वेश्चन मैंने देखा मुझे नहीं आता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे टेंशन में आ जाएंगे कि मुझे 10 मार्क का कंपल्सरी नहीं आया, नहीं आया कोई प्रॉब्लम। जिसने पढ़ा है बढ़िया बात है, जिसने नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कीप इट एंड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बात नहीं, आउट ऑफ 250 240 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया तो भी चलेगा, नो इश्यू अबाउट इट। बट इस क्वेश्चन को लेके कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। और यूपीएससी जनरली हैव एन हैबिट of putting at least one question every year in such type of a way। ये तो इस साल का तो इजी है, कभी आपको लिंगा तो भी पूछेंगे है कि नहीं, जेंडर अर्थ और सील का जेंडर, लोगों को लगा एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, लोगों ने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लिख के आया लास्ट ईयर, ठीक है, इट हैपेंस। नहीं पता है मत लिखो, व्हाई आर यू मेकिंग सच अ टाइप ऑफ मिस्टेक, जो एग्जामिनर पढ़ के बोलेगा कि यार एंटरटेनमेंट वाह आ जाए, ठीक है मत करो। या कभी पूछा था उन्होंने साइबरनेटिक्स हायरार्की ऑफ कंट्रोल टारगेट पास, देखो पीवाईक्यू। कभी उन्होंने पूछा है क्रिटिसिज्म ऑफ कम्युनिटी बाय कार्ल मार्क्स। तो दीज आर वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये कभी एक ही बार उन्होंने आज तक जिंदगी में पूछे। हाँ जब भी पूछे उसका एक बार आप पढ़ के रखो कि क्या पूछा है, तो किसी और जगह में इस्तेमाल करने के लिए होगा। बट द पॉइंट इज दैट एवरी ईयर दे आर डूइंग दिस। तो आपके पहले जो भी लोग आए उन्होंने ये फेस किया है, उसमें से भी कुछ लोग सिलेक्ट हुए, उसमें से भी कुछ लोगों ने 300 प्लस मार्क्स लेके आए हैं। तो ये एक क्वेश्चन है उन्होंने कि तुमको कोई अफेक्ट नहीं किया था, तो ना ये आपको भी अफेक्ट करना चाहिए। अरे समझ गए, फिर भी उसके बारे में आपको आपके लिए आंसर यहाँ पे दिया है, यू कैन सिंपली गो थ्रू दैट। ना आगे यहाँ पे एक और आपको कंसेप्ट दिखेगा, वुमेन्स एजुकेशन टू हेल्प द पैट्रियार्कल डिस्क्रिमिनेशन। ना ये भी सिलेबस का पॉइंट, अगर आप सिलेबस में जाओगे तो ये वाला आपको जो चीज दिखेगा, स्पेशली इन पेपर 2 दिस पार्ट इन योर सिलेबस एंड इन पेपर 1 दिस पार्ट इन योर सिलेबस। इसमें आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको डायनामिक लेवल पे पूछे जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल सोशियोलॉजी एंड चेंज, एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, ये तो बहुत ओपन एंडेड टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। वायलेंस अगेंस्ट वुमन, पैट्रियार्कल सोसाइटी तो ऊपर सिलेबस में पूछा ही है, एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, ये कंसेप्ट भी ऊपर आपके एक जगह पे पूछा है, देखो तो यहाँ पे आप उसको कवर कर सकते हो, राइट हो गए। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट कहाँ पे यस, emerging issues। Now please find out in your own time, but है syllabus में कहीं तो, right? Sexual division of labor and patriarchal society, women, violence against women, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। Understood? Now try to see a lot of points have been already demarcated, also highlight करके दिखाया, उसकी तरफ आप जाके देख सकते हो। और ये जो अभी ये जो आया है नारी शक्ति वंदना बिल, बिलीव अभी लिख के रखो 2024 में इसके ऊपर आपको जरूर एक क्वेश्चन आएगा। आपको सिर्फ वहां पे सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, राइट। आगे देखिए, अगेन रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ क्वालिटेटिव मेथड, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अगेन यू कैन रेफर इट थ्रू आवर टेस्ट सीरीज। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी के टेस्ट पेपर में, और ये क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में है। आपको दिखेगा वेरी सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द टेस्ट सीरीज आल्सो। तो टेस्ट सीरीज का फायदा हमेशा आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, एक बार आपका पढ़ाई खत्म हो गया, नोट बन गए, तो क्या करना है, कुछ नहीं, जस्ट कीप ऑन राइटिंग टेस्ट सीरीज। साल में कम से कम 2 टेस्ट सीरीज लिखो, मेंस में जाने से पहले
जिसमें 2 टेस्ट सीरीज लिखी है, एक्सेप्ट जो एक्चुअल मीन्स के पहले लिखते हो, तो टोटल मिलके जितने 3 टेस्ट सीरीज लिख के हो चुके हैं, जेन्युइनली लिखा है, प्रामाणिक, राइट, जो उसने ऑनेस्टली लिखा है, बिलीव उसका स्कोर बढ़िया आने ही वाला है। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू राइट 3 टेस्ट सीरीज बिफोर अटेम्प्टिंग द रियल मेंस एग्जामिनेशन। और इसका सिंपल मतलब क्या है पता है? अगर आप 3 टेस्ट सीरीज लिख के जाते हो, इसका मतलब है आपका चौथा अटेम्प्ट है। Even if you are a first attempt person, have written 3 test series and attending the mains, you are equal, you have almost equal experience as the 3 mains candidate. और कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि ऑलरेडी उनका 3rd 4th अटेम्प्ट है, कुछ उसमें से लोग होंगे जिन्होंने 1 या 2 मेंस लिखे, उन्होंने भी इतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तो इन कंपैरिजन विथ यू, दे आर एक्चुअली नॉट your competitors, they are already lagging in the competition. वो लिख रहे हैं सेकंड मेंस, बट उन्होंने उतना राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, they are already lost the battle with you, बस उनको पता नहीं है, रिजल्ट देखने के बाद पता चलेगा। So there will be lot of students who are into their second attempt, third attempt, fourth attempt, may not be clearing prelims, and they are simply waiting कि जिस दिन मेरा प्रीलिम क्लियर हो जाएगा उस दिन मैं टेस्ट सीरीज लिखूंगा। रॉन्ग अप्रोच। जिस दिन प्रीलिम क्लियर हो जाएगा उसके बाद सिर्फ 3 ही महीने बचे होते हैं, तो उसमें करोगे तो क्या क्या करोगे? तो उससे अच्छा है कि मेरा प्रीलिम नहीं क्लियर हुआ है, तो उसके बारे में मैं जानने के बाद में सोचूंगा, अभी मैं मेंस के बारे में सोचूंगा। और सिर्फ सोचने से भी नहीं चलेगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा। तो सोचो एक दिन कि टेस्ट सीरीज लगाना है, कौन सा लगाना है, थोड़ा सा रिसर्च करो, बेस्ट तो अपना ही है, तो अपना ही लगा लो, ठीक है? ओके, तो लगाओ। अच्छा, पहला टेस्ट लिखने के लिए आ जाओ, अच्छा लगेगा तो ज्वाइन कर दो। चलो ये ओपन ऑफर दे दिया मैंने, 15 तारीख को जो पहला टेस्ट है आ जाओ लिखने के लिए। आई विल इन्फॉर्म ऑफिस के ये ओपन तो ऑल रख देते हैं, मतलब जिनका प्रिपरेशन हुआ है भैया, सिर्फ कागज भरने के लिए, मतलब कि उस हिसाब से 2 घंटे एसी में बैठने को मिलेगा, ऐसा सोचते मत आप। तो जिन लोगों का बैच ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जो 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट टेस्ट इज ओपन टू ऑल, यू कम, यू राइट द टेस्ट, और उसके बाद में आपको अगर अच्छा लगेगा तो एडमिशन ले लो। जो लोग एडमिशन लेंगे उनका इवैल्यूएटेड कॉपी भी हम लोग इवैल्यूएट करके भेजेंगे। जो लोग एडमिशन नहीं लेंगे उनका इवैल्यूएट नहीं होगा कॉपी, बट आप लिख जरूर सकते हो पहले, ठीक है? तो ऐसे कर देते हैं। देखो इतनी उदारता जो मैंने दिखाई है, इसके लिए आप मुझे चाय पिला सकते हो। चलो आगे, मैक्स वेबर का थियरी, ये एकदम स्ट्रेट अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो वेबर्स थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, ये देखा है मैंने इसके लिए आपको, क्योंकि कंपैरिजन विद मार्क्स पूछा है, क्योंकि आए हम लोगों ने क्लासरूम में प्रैक्टिस रखा है। तो जब हम लोग क्लास में लेट से या टॉपिक लेट से स्टडीइंग रिलीजन, तो हम लोग होंगे कि कंपेयरिंग विद दुर्लभ मैक्स वेबर है कालना, तो आपको मैं क्लासरूम में बोलता हूं ये करके रखो, ये टेबल बना के रखो। और जब जब हम लोग आगे जाएंगे और जो जो कंसेप्ट जो हमारे थिंकर्स दिए हैं सिलेबस में, उनमें कंपेयर होती है। फॉर एग्जांपल कंसेप्ट ऑफ क्लास, मार्क्स भी बोलते हैं उसके बारे में और वेबर भी बोलते हैं, तो उनके हमें हमारे पास एक रेडीमेड आंसर बना चाहिए, तो ये हेल्प करेगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है? आगे जाते हैं। Researchers that will face the ethical issue in making the participator observation, again research methodology technique के ऊपर question, again a straightforward question, part of 100 marks, 110 marks that are allocated. Economic globalization has brought changes into the employment in 21st century. Now ये है dynamic question. इसको आप किसी एक एरिया में नहीं डाल सकते, ये सोशल चेंज का भी पार्ट है, ये आपके वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ का भी पार्ट है, वेरी गुड, बट डायनामिक नेचर में। बट इसका आंसर जब आप लिखोगे तो आपका फ्रेमवर्क होगा वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, उस पॉइंट को आप पकड़ोगे और उसमें ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या चेंज हो रहा है, ये अगर आप लिख पाएंगे तो ये आपका एक स्ट्रक्चर में आंसर आएगा। मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल पॉइंट्स आप उसमें कवर कर पाओगे, एंड क्वेश्चन के लेवल से ग्लोबलाइजेशन की वजह से उसमें आए हुए चेंज आप उसमें दिखा पाओगे। अगर आप इसको ग्लोबलाइजेशन से पकड़ोगे तो आपके बहुत सारे पॉइंट इधर उधर मिक्स हो जाएंगे, देन द प्रॉब्लम विल बी देयर, क्योंकि आपने शुरू भी ग्लोबलाइजेशन से किया तो चेंज कैसे हुआ ये दिखाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, उल्टा दिखाना पड़ेगा कि आज ग्लोबलाइजेशन में से पहले कैसे होता था, तो गलत नहीं है, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू डू दैट इन द एग्जाम। अरे समझ गए? तो इस टाइप से उसको करना था।
एंड दिस विल हेल्प यू। इसमें बहुत सारी चीजें आप गिग इकोनॉमी वाला जो कंसेप्ट है इसको भी आप इसमें लेके आ सकते हो, लाया होगा इसमें आपको आंसर में दिखेगा। ये देखो इनफॉर्मल इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, इनकम इनइक्वालिटी, ये सारी चीज आप इसमें लेके आ सकते हो। इंक्रीजिंग इन फीमेल्स पार्टिसिपेशन इनटू फॉर्मल लेबर फोर्स and so resulting into some of the other aspect, क्लास स्ट्रक्चर सोसाइटी में कैसे चेंज हो रहा है, सोशल स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, ये सारे पॉइंट आप इसमें लेके आ सकते हो। माइग्रेशन का पॉइंट डाल सकते हो। अंडरस्टूड ना? ये क्वेश्चन है, सोशल मीडिया हैज ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इनटू द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। ये है डायनामिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कौन सा पॉइंट? एजेंट ऑफ सोशल के साथ स्टेम्स के साथ कनेक्ट करोगे और थोड़ा सा बताओ। जो उसके 3 डायमेंशन है कनेक्शन, जो तीनों के तीनों बताएगा उसको चाहिए। जब उसको तरफ देख रहे हो उसे एटलीस्ट 2 तो चाहिए। ठीक है, बता। टेक्नोलॉजी ये पॉइंट हो गया, चलो ठीक है। हाँ भाई बताओ। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में आएगा, चलो सही है। सब मिलके 3 पॉइंट नहीं बता, क्योंकि टाइम ही डिवाइड करना है, 1/3 करना पड़ेगा। आगे बताओ। हाँ भाई दीपक आ रहा है। स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, ओके, ठीक था, बता सक रहे हो? नहीं? हाँ भाई नहीं, सोच के बताओ। इंटरनल सिक्योरिटी वो तो जीएस हो गया। कनेक्शन कर सकते हैं, आंसर में कैसे लिखोगे वो इम्पोर्टेंट है। दोस्त का गया, बाजू में जो बैठा है रोज ऑनलाइन देख रहा है, ये तो मस्त है। बट तुम्हें पता है ये डेटा निकाल सकते हैं कौन पर देख रहा है? हाँ भाई बताओ। पहला तो कनेक्शन उन्होंने सही किया। पहले तो फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में, मतलब प्रोटेस्ट एंड एजिटेशन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का टॉपिक, ठीक है। तो ये होगा बेस। बट पूछा गया उन्होंने सोशल मीडिया ने कैसे चेंजेस उसमें लेके आए, तो ये पता होना क्यों जरूरी है। देखो इंट्रोडक्शन का एक हिस्सा मैं आपको बताता हूँ करके, क्योंकि जब आप इसको बेस फाइंड आउट करोगे ना, क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछा है, तो आपको उसके आंसर में पॉइंट्स लिखने में इजी जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, सोशल प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोबिलाइजेशन कैसे करना है, डिससेमिनेशन कैसे करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको आप सोशल मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये 5-6 पॉइंट मेरे पास होते हैं, राइट ना। इसमें मैं डिजिटल या जो भी डिजिटलाइजेशन इन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया को मैं लेके आऊंगा, एंड देन उसके बारे में मैं एग्जांपल्स लेके आऊंगा एंड उसके रिलेटेड, क्योंकि ऑलरेडी आई नो कि मुझे किस किस चीज के बारे में अभी ये 3 एरियाज मुझे पता चले, तो उसमें इसके रिलेटेड जो फिगर्स है वो मैं वहां पे लेके आऊंगा। तो जो फिगर मैंने टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज में यूज किया है, जो बोलता है, कोई बताएगा कौन सा फिगर है जो बोलता है कि ऑलमोस्ट ऑल चेंजेस इन द सोसाइटी हैपेंस बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई बोल के गया है? हाँ बहुत बढ़िया भाई, फिर क्यों नहीं पता है? देखो अब ये क्या है, ये क्या हो रहा है, जस्ट फॉर डिस्कशन पर्पस। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है। तो जैसे ही मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज को आप यहाँ पे लेके आ सकते हो, तो आपने बोला हाँ विमलेन नाम का स्कॉलर है, उनको लिख सकते, क्योंकि हमारे बुक में दिया है, नोट्स में दिया है। बट ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनका नाम नहीं आया, सही है ना। तो ये जो गैप है इसमें कि क्वेश्चन और मेरा प्रिपरेशन, ये जो गैप है, डिमांड और सप्लाई का जो गैप है, सप्लाई आपके पास है कंटेंट का, बट आपको डिमांड ही समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे हो। तो ये तो इसकी तरह हुआ ना कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं एजुकेटेड, ग्रेजुएट है, बट इंडस्ट्री को जो चाहिए वैसे नहीं है। तो बीच का चीज क्या होता है, क्या करती है फिर इंडस्ट्री या कैंडिडेट ने क्या करना चाहिए? अरे स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। मतलब हमारे केस में क्या होना चाहिए, यूपीएससी एग्जाम डिमांड ओरिएंटेड प्रिपरेशन शैल बी डन। ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ट्रेनिंग कैसे करोगे? अगेन यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज लिखना पड़ेगा, और टेस्ट सीरीज शैल बी वेरी मच सिमिलर टू द कंटेम्पररी एग्जामिनेशन पैटर्न, not like what is happening
in the 10 years back. तो जो लोग ऐसे टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, बिलीव मी, आपको मूर्ख बना रहे हैं। देखो, मूर्ख बनाने वाला तो होशियार होता है, जो मूर्ख बनता है उसका लॉस है। तो आपको सोचना है क्या ऐसा टेस्ट सीरीज में लिखूंगा। देखो, लिखने में फीलिंग आपको अच्छा है कि मेरा लाइफ बढ़िया चल रहा है, बट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न इज डिफरेंट। अरे समझ गए? तो उसमें 2-3 एग्जांपल देखो। तो उसमें मैं आपको कुछ कंटेंट भी देके जा रहा हूँ। तो देखो, ये बढ़िया सा स्कॉलर का बुक है, ट्विटर एंड टीयर गैस, इजी टू रिमेम्बर, राइट। अगर नाम भी नहीं याद आ गया स्कॉलर का, तो आप बुक का नाम तो लिख सकते हो ना। इन द रिसेंट टाइम अ बुक नेम्ड ट्विटर एंड टीयर गैस, द स्कॉलर हैज एक्सप्लेन्ड, खत्म ना बात। एग्जामिनेशन अंडरलाइन कर लो, बात खत्म। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप समझ रहे हो, बट ये एक्स्ट्रा पॉइंट ओनली तभी हेल्प करेंगे जब आपके पास क्या होगा, बेसिक आंसर का फॉर्मेट होगा। ये पहले पता होना चाहिए, यही काम करता है ना। अरे सही है क्या? तो इसको मैं लिखूंगा #MeToo। अरे ऐसा कुछ हुआ था, मीटू मूवमेंट। तो देखो, मैं कहां से लेके आया, वुमेन्स मूवमेंट फ्रॉम द टॉपिक कॉल्ड एज सोशल मूवमेंट, वहां से मैं पॉइंट लेके आया और यहाँ पे डाल दिया। अरे सही है क्या? देखो, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अब देखो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ सोशल मूवमेंट। तो देखो, इसका क्या एग्जांपल दे दूं? अरे बताओ, किया है हम लोगों ने क्लास में। अरे किसी ने जास्मिन रिवॉल्यूशन सुना है या उसको अगस्त, क्या नाम था उसका, अरब स्प्रिंग। तो शुरू हुआ है ट्यूनिशिया में, स्प्रेड हुआ है इनटू गल्फ रीजन, इन मिडल ईस्ट, इन नॉर्थ, ये अफ्रीका, सीरिया तक हम लोग देखेंगे तो स्प्रेड हुआ है। स्टिल हैपनिंग फॉर लास्ट 10 इयर्स। तो क्या इसकी 2-4 एग्जांपल दे सकते हैं? अरे सही है कि नहीं? तो देखो, एग्जांपल भी देने तो एग्जामिनर को पता होंगे ऐसे एग्जाम देना, जो तुम्हारे इंस्टाग्राम पेज पे हैशटैग लिख रहे हो वो वाला यूज नहीं करना है यहाँ पे एज एन एग्जांपल, बिकॉज दैट विल नॉट बी मच रिलेवेंट। ठीक है, वन से आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो now she will remember कि कौन सा एग्जांपल लिखना है, which is at a level which is known to examiner। ठीक है नहीं, अपने लेवल का एग्जांपल एग्जामिनर को उतना अपील नहीं करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे देखते हैं, एजी प्रोडक्ट्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी नाम का सिलेबस में पॉइंट है, इसमें से आया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, रिपीट होता है हमेशा, राइट। देन टेलरिज्म, अगेन दिस इज द क्वेश्चन, ये थोड़ा ऑर्बिट है, राइट। तो जो टेलर नाम के स्कॉलर है, फ्रेडरिक टेलर, FW टेलर, he is a person from late 19th century to 18th century की शुरुआत में, when the industrial revolution spread across Europe और थोड़ा अमेरिका में भी चला गया। तो जो प्रोडक्शन हो रहा था, वो प्रोडक्शन साइंटिफिकली कैसे किया जा सकता है और उसकी वजह से लॉसेस कम कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर हो सकता है और आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो साइंटिफिक वर्क मैनेजमेंट के बारे में उन्होंने बात किया, राइट। अगर हम लोग इसको चाहे तो ब्यूरोक्रेसी के टॉपिक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में इतना नहीं, बट थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं, बट प्राइमरली दिस स्कॉलर इज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कॉलर, राइट। तो स्टडीड इन एडमिनिस्ट्रेशन या MBA अगर किसी ने किया होगा, उसमें ऑपरेशनल मैनेजमेंट अगर किसी ने किया है, तो किया है किसी ने, आज नहीं होगा, ऐसे जनरली नहीं होता है। या कुछ लोग BA में भी इसको थोड़ा, सॉरी BCom में भी इसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पे है, लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी की बात करोगे पर्टिकुलरली, तो ये जनरली कहीं पे मेंशन किए हुए नहीं दिखेंगे आपको ना। आगे वाले फ्यूचर वाले कंटेंट में अपने आप टेलर आ ही जाएंगे जहाँ पे भी आप जोड़ोगे। तो इसको आप इसके साथ भी थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कस किए थे। कहाँ पे? जब वेबर बना रहे थे कैपिटलिज्म का आइडियल टाइम। अरे कुछ याद आ रहा है? टाइम इज मनी, क्रेडिट इज मनी, ज्यादा मत सोना, ये भी तो बताया था ना मैंने, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना सभी चीज का। तो ये जो बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बुक था, बुक के ऊपर
आइडियल टाइप बनाया था इन्होंने मैथ पेपर में, तो उन्होंने भी ऐसे ही प्रिंसिपल बताया टेलर का, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, इसका कनेक्शन वहां पे भी आप डेवलप कर सकते हो, समझ रहे हो? बट अगेन दिस इज नॉट बिट क्वेश्चन, बट लकीली दिस इज एन क्वेश्चन व्हिच इज इन ऑप्शन, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, एंड दैट वाज इट वाज नॉट सो मच प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट, अंडरस्टूड? आगे देखते हैं न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स। तो आगे यहाँ पे अगेन हम लोगों को सोशल मूवमेंट्स नाम का टॉपिक है, वहां पे रिलीजन मूवमेंट आप पढ़ते हैं। न्यू रिलीजन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सिलेबस का, हम लोग डिस्कस करते हैं इसको पॉइंट, राइट? नाउ examine the role of science and technology in addressing old age taboos and superstition. Again technology and social change ऐसा टॉपिक है, बट सोशल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ क्या पूछा है उन्होंने, कल्चरल या रिलीजियस डायमेंशन ही फोकस करके उन्होंने बोला है। तो बड़े टॉपिक में से आपको पता है कि सारा बात मुझे बता कि टेक्नोलॉजी से जेंडर या स्टीरियोटाइपिंग में क्या चेंज हुआ, नहीं, फोकस इट ऑन द टैबू वाला एस्पेक्ट या सुपरस्टिशन मतलब रिलीजन वाला एस्पेक्ट के ऊपर बात करके बताओ। तो द वे टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज एंड रिलीजन में कंटेम्परेरी ट्रेंड्स क्या है, ये दो चीजों को कलम करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है। अगेन देखो इसका भी आंसर आप आराम से, अरे समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट पेपर 1 व्हाटएवर वी हैव डिस्कस। अरे समझा? ठीक है, बैठने का इच्छा है? इतना नहीं आया, पेपर 2 का भी कर ही लेते। अरे क्या कह रहे हैं पक्का? तो ऐसे नहीं लगना चाहिए ना जोर जबरदस्ती का। अरे क्या कहते हो, मतलब देखो ना आई नहीं है। चलो ठीक है, तो आप सब लोगों ने इतना मुझे फोर्स किया है, तो पेपर 2 कंटिन्यू करते हैं। पेपर 2 जल्दी हो जाता है पेपर 1 में, और इसमें भी आप देखो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन और आवर डिस्कशन इज फोकसिंग ऑन सच पॉइंट्स जो पेपर 2 में भी रिलेवेंट रहेंगे। कि पेपर 1 या पेपर 2 हो, आपको एग्जामिनेशन का पहला डिमांड समझ होना चाहिए, पूरे एग्जामिनेशन का। देन एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चन और फिर उसको कैसे लिखना है, दैट बिकम्स द थर्ड केस। तो थोड़ा सा पेपर 2 के भी क्वेश्चंस को साथ में लेते हुए आप ऑलरेडी डन द एनालिसिस नाउ कि क्या क्या आता है, क्विकली उसमें देखते हैं कि सम ऑफ द एरियाज, फॉर एग्जांपल सिस्टम ऑफ किनशिप सबसे ज्यादा वेटेज है, राइट? पेपर 1 में इसके ऊपर कौन क्वेश्चन आए थे, एक या दो ही क्वेश्चन आए, इन पेपर 2 में हमने बड़ा लगे डाले, राइट? देन आगे अगर आप जाओगे तो रूरल एंड एग्रीकल्चर सोशल स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, तो ये देखो, तो ये तो इसके ऊपर 80 मार्क्स का वेटेज है। अरे आप समझ रहे हो ना? तो वी कंसीडर आवरसेल्फ एज अ रूरल सोसाइटी, सही है ना? अरे इंडिया इज अ मेजॉरिटी रूरल सोसाइटी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल इन्वॉल्वड इनटू प्राइमरी सेक्टर एंड नेचुरली एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये जो चीज है ये आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिखती है क्या, राइट? एंड नाउ कास्ट सिस्टम के ऊपर इस साल उन्होंने कंपैरेटिवली थोड़े कम क्वेश्चन पूछे हैं, बिकॉज इट इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट हैज अ रिलेवेंस विद अदर टॉपिक्स, बट स्टिल आपको दिखेगा यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। बाकी देखो सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो अगर आप देखोगे सोशल मूवमेंट्स के ऊपर पेपर 1 में भी बहुत क्वेश्चन पूछे, 2 में भी क्वेश्चन पूछे, तो जिसने पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी सोशल मूवमेंट ये पार्ट अच्छी तरीके से किया था उसका बल्ले बल्ले हुआ है इस पर्टिकुलर मीन्स। ये पॉपुलेशन एंड डायनामिक्स, इसको भी 40 मार्क्स का वेटेज है। जनरली आगे जैसे पेपर 2 पेपर 1 में कुछ एरिया लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आते प्रिपरेशन में, ऐसा एक एरिया है पेपर 2 वाला, दैट इज पॉपुलेशन डायनामिक्स। ये जनरली लोग स्किप ही करते हैं, मतलब इतना इजी पार्ट है सिलेबस का और बहुत ही सरल तरीके का, मतलब बहुत ऐसे चेंज होके क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको ना कुछ चीजें उसके रिलेटेड याद करनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी दिस पार्ट इज आल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन जीएस इंडियन सोसाइटी में भी पॉपुलेशन का टॉपिक है आपको, यस डेमोग्राफी वाला आपको जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी में भी पूछते हैं, जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में भी ये पूछते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज आप प्रिपेयर करके रखोगे उसका आपको जीएस 1 में 3 में दोनों जगह पे एप्लीकेशन मिलेगा। तो डोंट स्किप दिस पार्ट, और बाकी सब छोड़ दो, यहाँ पे 40 मार्क के क्वेश्चन पूछे हैं
इसकी तरफ जरूर ध्यान दें। देखिए चलो अब एक एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ये पढ़ने के बाद सबको थोड़ी खुशी होती होगी लाइफ में। सिंपल क्वेश्चन है क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें। लेकिन उसमें भी देखो यही क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज में आपको रिफ्लेक्ट हुआ हुआ दिखेगा। ये क्या आया है, ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम बोल सकते हो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, ये नोट्स में से है ना, सही है। नोट्स है आप सब लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास नोट्स होंगे, राइट। तो क्या ये उसमें से ही दिखाया गया है, चेक कर लेना एक बार, राइट, या नहीं तो किसी टेस्ट सीरीज के आंसर्स में से आपको ये दिया होगा। क्वेश्चन भी देख, सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज 2023 टेस्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 8, हमने भी वही डाला था पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, तो क्या मुझे यूपीएससी का पेपर पता होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। यूपीएससी अच्छा ठीक है, अपना सिंपल होता है, यूपीएससी यहाँ से देख के तुम सब लोग को ऑब्जर्व करती, ऐसा हमारा मानना है, राइट। तो देखो मुझे कोई यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर अगर नहीं पता है, दिस इज ऑल अबाउट द कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्या पूछते हैं। तो ये हमेशा आपको एक क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टडी जो अप्रोचेस है, पर्सपेक्टिव है इंडियन सोशियोलॉजी के, हमेशा एक साल आपको एक क्वेश्चन रहेगा। आइदर इंडियन देसाई का आपको पर्सपेक्टिव पूछेंगे या इंडोलॉजी पर्सपेक्टिव पूछेंगे जीएस बुरे साहब का, या एमएन श्रीनिवास साहब का स्ट्रक्चरल फंक्शनरी जो पूछेंगे। मुझे कैसे पता है, क्योंकि सिलेबस में दिया है, राइट। तो यही 3 पॉइंट दिए हैं, तो इसी 3 पॉइंट के ऊपर हमेशा आपको एक क्वेश्चन आएगा। तो इसका मतलब क्या है, 2024 में ये छोड़ के 2 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा। अब मैं अगर लास्ट 3 साल का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूंगा तो आई कैन प्रेडिक्ट कि 2024 में 3 में से कौन से है, सही है। तो ये जो करेंगे हम लोग जब मेंस 2024 का टेस्ट सीरीज चलेगा, जब आप दोगे और 1 to 1 मिलने आओगे और आपने एटलीस्ट आधे से ज्यादा टेस्ट के टाइप पे चल रहे हैं, तो ये डिस्कशन मेरा और आपका होगा कि इस साल कौन सा क्वेश्चन आने का चांस है। ये क्वेश्चन पक्का पकड़ करके रखो, ये इस साल आने वाले, इसको प्रिपेयर करके रखो। बट ये किसके लिए अवेलेबल रहेगा ये सारा वाला डिस्कशन, ऑब्वियसली जो लोग टेस्ट सीरीज लिखेंगे उन्हीं को ये बताने से फायदा होता है, इसीलिए वो 1 to 1 हम लोग रखें। अंडरस्टूड, आगे जाते हैं। देखो right now this is beautiful question. The decade of 1950s was a golden period in the अच्छे थिंकर्स बता, उनके केस स्टडीज बताओ, उनके बुक के नाम का, बस यही क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछा है और वही हम लोगों ने भी आंसर में किया है। तो देखो रूरल रियलिटीज के बारे में इन लोगों ने पढ़ाई किया, उनका रामपुरा साउथ इंडिया में पढ़ा है, राजस्थान विलेज यहाँ पे पढ़ा है। एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में मुजुमदार साहब बात करते हैं, चट्टोपाध्याय साहब बात करते हैं। कास्ट और सोशल सर्टिफिकेशन के बारे में लुइस डिमोंड बात करते हैं, घनश्याम शाह बात करते हैं, उनका बुक का नाम दिया है, उनका विलेज का नाम दिया है। अरे कुछ समझे, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका आपको बनाया हुआ सारा कंटेंट बुक्स में दिया हुआ है, वो सिर्फ आपको याद रखना है और एग्जाम में जाके लिखना है। नथिंग वेरी इजी देन दिस पर्टिकुलर केस, इसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसका फायदा बहुत है। अगर ये आप पकड़ के रखोगे तो यहाँ पे आपको कम से कम 10-15 स्पीकर्स मिलेंगे जो अलग अलग एरिया के बारे में चीजें लिखते हैं। यही आपको बाकी टॉपिक्स में भी यूज होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी नीड टू। देखो आत्रे बेटे है, के शर्मा है, एमएसओ राव है, तो यहाँ पे बैठे आपको 10 क्या मिल गए, केस स्टडीज मिल गए। बिलीव मी, यू कैन यूज दिस कंटेंट टू योर ओन अदर नोट्स, जो भी आप बना रहे हो वहाँ पे टॉपिक में आप यूज कर सकते हो, जिनके नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं स्नेहल, राइट। तो आप अपने क्लास के नोट्स के इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। विकास का गया आया ना, लेट आए हमेशा की तरह, अच्छी बात है, हमेशा लेट आए।
इंटरव्यू में नहीं जाना है भाई, वहां पे देखेंगे। मेंस में तो बिल्कुल नहीं जाना है, 10 मिनट के बाद लेते नहीं है। किसी भी एग्जाम में 10 मिनट के बाद अगर आप गए तो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेते, उनका डिस्क्रिप्शन है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ वो नहीं लेंगे। टाइम पीरियड आप एक बार देख लेना, बट लेंगे तो भी अगर 10 मिनट लेट पहुंच रहे हो तो फिर तो पेपर कंप्लीट करने में ही प्रॉब्लम, राइट। तो ये आदत डाल दो विकास, हमेशा टाइम के पहले पहुंचने 5 मिनट, राइट। हाँ, सब लोग आगे बढ़ेंगे जैसे कि सब लोग टाइम पे। देखो आगे देखो, ये एट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट और इंटरैक्शनल अप्रोच के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। आगे कौन सा आप अप्रोच यूज करते हो टू स्टडी सोसाइटी, ये पूछा उन्होंने, लेकिन उसको भी स्पेसिफिक कर दे, कास्ट सिस्टम में बताओ। तो कास्ट सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो वी स्टडी अबाउट एम.एन. श्रीनिवास, और उनका हम लोग कौन सा एस्पेक्ट पढ़ते हैं? हाँ, संस्कृताइजेशन, वो तो थ्योरी है उनका, अप्रोच है उनका स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, पर्सपेक्टिव, इंटरैक्शनल अप्रोच पढ़ते हैं। अगर लुईस मॉल पढ़ेंगे तो उनका इंटरैक्शन, उनका एट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। तो जब जब कास्ट सिस्टम पढ़ेंगे टॉपिक, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स में आपको ये लिखा हुआ है नोट्स में, एट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, और वो स्कॉलर ये। तो एटलीस्ट ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट वन थिंकर यू नीड टू ब्रिंग टू सब्सटेंशिएट योर आर्गुमेंट। एम.एन. श्रीनिवास लेके आओ, लुईस ड्यूमॉन्ट लेके आओ, या जीएस गुरे लेके आओ, वो भी एट्रीब्यूट्स बताते हैं, वैशिष्ट्य बताते हैं, और वैसे आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। ट्रेडिशन ऑफ मॉडर्निटी एंटीथेटिकल टू ईच अदर, ये क्वेश्चन आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखो, और हम लोग इसको देखेंगे हमारे टेस्ट सीरीज के साथ काम पे जुड़ता है, राइट। मैं सारे भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखा रहा, ये भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का ही है, देखो एट्रीब्यूशनल और इंटरैक्शनल। मैं बस कुछ ही क्वेश्चन आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पढ़ो यूपीएससी का क्वेश्चन, ये पढ़ो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर है क्या, दिख रहा है? सेमी का क्वेश्चन, एंटीथेटिकल टू ईच अदर मतलब डायलेक्टिकल रिलेशन टू ईच अदर ना, अरे सही है ना, राइट, अरे एग्री। तो देखो ये भी क्वेश्चन कौन सा है, टेस्ट सीरीज 2023 टेस्ट 3। अगर ये भी दिखा होगा, टेस्ट 3-4 चला होगा, आई थिंक जुलाई मंथ के में चल रहा होगा ये टेस्ट, राइट। तो वहां पे देखो यही इसमें पूछा है, और यही आपके एग्जामिनेशन में भी आया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट हमारे टेस्ट सीरीज से आए हुए दिखेंगे। बहुत सारे लोग आपको, स्पेशली दिल्ली वाले क्लासेस जो होते हैं, तो आपको गला फाड़ फाड़ के बताएंगे कि हमारा ये सब कुछ बढ़िया होता है, हम ही बेस्ट है, हम ही हमें, बाकी सब पानी कम है। ये दिल्ली वाले क्लास आपको गला फाड़ फाड़ के बताएंगे। देखो हर एक का अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल है, वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज समबडी, वी आर सिंपली सेइंग यू कि यहाँ पे भी है बस आपको देखने की जरूरत है। तो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। जो चीज हम लोग आपको बहुत ही अफोर्डेबल लेवल पे, बहुत ही क्वालिटी में दे रहे हैं, वो आप जाके कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओगे, उसके 4 गुना पैसे भी भरोगे, वहां पे ना आपको मेंटर मिलेगा, मतलब जो आपका इवेल्युएट करेगा वो इंसान अलग होगा, जिसके साथ आप बात करोगे वो अलग होगा इंसान, एंड रेयरली यू विल बी टॉकिंग विद द रियल फैकल्टी। जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करते हो तो जो वहां के फैकल्टी है, जो सोशियोलॉजी पढ़ा रहे हैं, उनके साथ बहुत रेयरली आप एक्चुअल में बात करोगे, फोन पे या मिलने के बाद। मिलने के लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, ऑल हैव माय कांटेक्ट नंबर ना, अरे है ना सबके पास पक्का, ठीक है सबके पास है। तो आई ऑलवेज रिप्लाई यू ऑन द मेल, टेक्स्ट और फोन पे, और आप मुझे आके मिल सकते हो, मैं तो यही तो काम शेड्यूल। तो टेस्ट के बाद तो 1-to-1 मिलेंगे। आप किस मेंटर को मिलने जा सकते हो दिल्ली, बताओ। ऑनलाइन कितने बार आप उसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करोगे, फोन पे कितने बार बात करोगे, बहुत डिफिकल्ट है। तो डू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, बट आई एम टेलिंग यू कि सस्ती चीज महंगी खरीद के सुल्तान मिर्जा मत बनो, ठीक है। रियल चीज पे आओ, और रियल चीज क्या है, कहाँ पे मेहनत डालनी है, वहां पे ज्यादा फोकस करो। कोई कुछ कर रहा है इसलिए वो करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी आप चीज के ऊपर फोकस कर सकते, राइट। आगे जाते हैं।
देखो ये सारी चीज आपको अगर ट्रेडिशनल मॉडर्न इंडिकेटर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें दिखी, आप यहाँ पे एक और बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 का पेपर चल रहा है, तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि मैं पेपर 1 के थिंकर नहीं यूज करूंगा। यस, आई हैव टू ब्रिंग दैट। फॉर एन एग्जांपल, मैथ्स पेपर की इसके बारे में बात कर रहे हैं, टालकट पार्सन भी बात कर रहे हैं, एंथनी गिडन साहब ने तो स्ट्रक्चराइजेशन थ्योरी नाम से एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट भी लिखा है। नाउ अनदर थिंग, एंथनी गिडन इज अ वेरी गुड स्कॉलर, लेकिन बहुत सारे लोगों के पढ़ाई में है ही नहीं। तो हमेशा हम एक चीज करना कि ऑनलाइन जाओ, थोड़ा सा, उनकी एक बुक भी है एंथनी गिडन साहब की, पर अभी हम कहाँ जाओगे बुक पढ़ने के लिए, बट यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड यू कैन सर्च अबाउट एंथनी गिडन एंड ट्राई टू फाइंड आउट ऑन व्हिच एरियाज ही हैज टॉक्ड अबाउट मोर। तो आपको 3-4 एरियाज मिलेंगे जिसके ऊपर उन्होंने काम किया है। तो जो एरिया हमारे सिलेबस के साथ कनेक्टेड है, फॉर एन एग्जांपल ही इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चराइजेशन थ्योरी, जहाँ पे वो बोलते हैं कि कैसे इंडिविजुअलिज्म मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, ट्रेडिशनल मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कैसे एक साथ रहता है। तो सोशल चेंज की भी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की भी, बहुत सारी चीजें जिसके बारे में एंथनी साहब बोलते हैं। तो उनके रिलेटेड में 2 पेज का नोट बना। तो व्हाट विल हैपन wherever you are writing something, if you bring Anthony Giddens as an extra point, he is going to give you 1 extra mark guaranteed, because एग्जामिनर को पता है he is a very great scholar। जैसे आप जॉर्ज रिजर पढ़ते हो, उनकी बुक पढ़ते हो ना, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, राइट, वैसे एंथनी गिडन साहब का भी बुक है, अपने रेफरेंस लिस्ट में भी दिया हुआ है। 99% people don't go for that, but नहीं गए तो भी एटलीस्ट you need to have that in your let's say notes। अगर उनका बुक पढ़ोगे तो वेरी गुड, ठीक है। जिसके पास टाइम है जरूर पढ़ना, बहुत ही बढ़िया बुक है और आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा तरीके से बढ़ाए। लेकिन उसमें हम लोगों को अगेन वी हैव टू फोकस ऑन आवर इंडियन थिंकर्स आल्सो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएंगे योगेंद्र सिंह साहब, क्योंकि उनका खुद का बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। एम श्रीनिवास साहब आएंगे क्योंकि वो भी इसके बारे में बात करते हैं कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के रिलेटेड कैसे चीजें बनती है। तो एक संस्कृताइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं, राइट, जो, और एक मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस, एक बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन का प्रोसेस कैसे चेंज हो रहा है, उसको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। और एक बढ़िया पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, मिल्टन सिंगर और मैरियट को लेके आ सकते हैं। दे आर यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव ब्राउन, ग्रेटर ट्रेडिशन और लेसर ट्रेडिशन। तो कैसे चेंज होता है, अगर ये 5-6 भी पॉइंट आप लिख पाओगे, बिलीव मी, आपको इसमें आउट ऑफ 10 कितने मार्क का क्वेश्चन पहले, इट्स अ 10 मार्क करना। बिलीव मी, इफ यू राइट these 3 thinkers, western thinkers, if you bring relative brown as a connecting point, because he is a western anthropologist, जिसका स्टडी मिल्टन सिंगर इंडियन सोसाइटी में यूज करते, तो ही विल बी कनेक्टिंग पॉइंट, राइट। तो पहले लिखे वेस्टर्न थिंकर्स, ये वाला ग्रेटर ट्रेडिशन लेसर ट्रेडिशन का पॉइंट में लेकर आया एज अ कनेक्टिंग पॉइंट, और फिर मैं नीचे लेके आया आई एम राइटिंग योगेंद्र सिंह, आई एम राइटिंग एम श्रीनिवास, एंड देन आई एम एंडिंग माय आंसर, यस दिस इज द केस। बिलीव मी, इसमें आपको आउट ऑफ 10 they can also give you 6.5 marks, even if you are writing it in a good way, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, no problem in getting even 7 marks। क्या प्रॉब्लम है 7 मार्क्स, 6 मार्क्स लेने में क्या प्रॉब्लम? And believe me, wherever you are touching 6 or 60% and above, you are doing extraordinarily good there, right? तो एवरेज भी तो आप छोड़ दो, एवरेज इज अबाउट 40%, above average is about 50%, excellence is about 60%, anything beyond that is extraordinary, and that's why 60% with 300 marks out of 500, anything beyond 60% is extraordinary effort, और यही चाहिए होता है। अरे आप समझ रहे हो? तो अगर जीएस में कहीं गड़बड़ भी हो गया, ऐसे में कहीं गड़बड़ हो गया तो भी चलेगा, ऑप्शनल इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी, इमेजिन लिस्ट में लाके ऑप्शनल मुझे रख देगा, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहां पे लगेगा, राइट। ये देखो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ लॉ एंड रिफॉर्म्स पूछे। देखो ये देखो हमारा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन, ये देखो, ये है सूरज, ये है जयद्रथ, है क्या? देखो ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में पूछा है, टेस्ट सीरीज 2020 का क्वेश्चन नंबर 4A, टेस्ट नंबर 4 में आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ मिलेगा, ठीक है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस।
आगे देखते हैं, उसमें भी देखो आप सब जगह आई हैव पर्पसली हाइलाइटेड द स्कॉलर डी एन मुजुमदार साहब है, बीएस बाविश करें, एमएस राव है, इन लोगों को आपको स्टडीज आंसर में लेके आना पड़ेगा, राइट? नाउ now these are some of the scholars specifically given in caste topic. तो देखो पूछा है क्वेश्चन, डायरेक्टली आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है और थोड़ा सा डायनामिक करके पूछ लेते हैं। दिस इज द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको थोड़ा स्टार मार्क करके रखेंगे तो इसको घर पे जाके थोड़ा सा समझो कि आजकल कास्ट के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछते। नाउ दैट डेज आर गॉन जब वो पूछ रहे थे कि डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कास्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेट्स से जीएस बोले, वो दिन गए। ऐसा अभी सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आपको आएगा तो डायनामिक क्वेश्चन ही इसके ऊपर आएगा, राइट? आगे देखो, इसमें भी आपको सारा इंपॉर्टेंट चीज देख लिया है, इसमें भी यस और नो की तरफ डिवीजन किया है, डिस्टिंग्विश किया है कि जो इंडियन विलेजेस है दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडियाज बेसिक सिविलाइजेशन वैल्यूज है कि नहीं, तो हाँ है, नहीं है, कंफ्यूजन। अगर समझ रहे हो तो देख है, नहीं है, कंफ्यूजन, बिकॉज दिस इज अ 20 मार्कर क्वेश्चन। तो इसमें आपको लिखने के लिए चांस है 300 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप उसके डिटेल में जाओगे, डेप्थ में जाओगे और आंसर करने की कोशिश करो। Now again, role of middle class in India, democracy and development. I mean, again an example of change the pattern by UPSC. यही आप पीछे जब 5-6-7 साल पहले का क्वेश्चन पेपर निकाला, आपको सिंपल क्वेश्चन दिखेगा मिडिल क्लास इन इंडिया 10 मार्क्स नहीं पूछा है। अभी क्या पूछा है? मिडिल क्लास इन इंडिया का रोल बताओ इन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। सिलेबस को देखो, आपको दिखा था क्या किया है, देखो मिडिल क्लास इन इंडिया, ये यहाँ पे सिलेबस में, अरे ये क्या, ठीक है ना। आगे उन्होंने क्या पूछा है देखो, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे कनेक्ट किया है, ठीक है। एट द सेम टाइम हाई बंटी का साथ स्लो है, क्या कर सकते, राइट? डेवलपमेंट, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछा, अरे समझे, ठीक है। तो सिलेबस से 2 या 3 पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, जब मैं बोल चुका हूँ वही आ रहा है, बिकॉज मे बी वेट विथ कैल्शियम। Yes, we'll keep on discussing, right? तो आगे एक क्वेश्चन आया है, the question is about analyze the role of market and modern forces in understanding the changing trend in marriage system। ये क्या किया हमने, मैरिज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। They are not only saying discuss the changing trends in marriage system, वो ओपन एंडेड हो गया, वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, अंडरस्टूड। अभी वो क्या बोल रहे हैं, they are bringing another dimension to the question, the role of market and modern forces in changing pattern of marriage system। तो अरे आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो, they are making it very narrow window for you to write an answer। उसको छोड़ के जो भी आप लिखोगे they are not going to count it into the examination की, ये इसको मार्क्स देने के लिए काम नहीं करेंगे। इसलिए जनरली आपको ये दिखेगा कि जब भी आप पेपर देख के आ जाओगे मेंस के, आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, तो मेंस के लोग आपको बोलेंगे कि बहुत बढ़िया गया है भाई पेपर में, मैं पूरा लिख के आया हूँ, मैरिज सिस्टम तो मैं तैयार करके गया, मैंने नोट कर दिया है। लेकिन उसको आप पूछोगे ये मार्केट फोर्सेस के साथ कोरिलेट किया क्या, तो बोलेगा अरे नहीं वो नहीं उतना लिखा, वो मैंने 2 पॉइंट लिखे, बट मैंने ना बाकी की भी चीजें लिखी है उसमें, बट जो 2 पॉइंट लिखे उसको ही मार्क्स आएंगे, जो बाकी की चीजें लिखी है उसको मार्क्स नहीं
आई, दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन, और बिलीव में ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को एक्सपेक्ट है इन द अपकमिंग फ्यूचर, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे स्कॉलर्स दिए हैं जिसको आप पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो, एग्जांपल लाइक दीस आर, राइट। नाउ ये देखो कंसेप्ट ऑफ लुईस डिमॉन्ट्स कंसेप्ट ऑफ बाइनरी ऑपोजिशन विद रेफरेंस टू कास्ट सिस्टम इन इंडिया। नाउ ये है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है यूपीएससी का क्वेश्चन, ये है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन। आया है क्या? डिमॉन्ट्स पर्सपेक्टिव टू स्टडी कास्ट सिस्टम इन इंडिया कंटेम्परेरी रिलेवेंस बताओ। तो मतलब उसमें हम लोगों को सिंपल लिखना है, टेस्ट सीरीज 2023 टेस्ट 4 के ऊपर का क्वेश्चन है। आपको बाइनरी प्यूरिटी एंड पॉल्यूशन का जो कंसेप्ट है हम लोगों ने जीएस में भी पढ़ा है, राइट। तो उसी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछा है, दैट इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर। अंडरस्टैंड, आगे जाते देखो, ये होमो हायरार्किकस और होमो इक्विलिस का कंसेप्ट है, जो उन्होंने किया है उनको याद आना चाहिए, इनकी बुक का भी नाम है। अंडरस्टूड, आगे चलते हैं। नाउ डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट एंड अलायंस। तो किनशिप फैमिली कैसे बनता है? तो एक तो आपका बाय बर्थ बनेगा, तो होता है डिसेंट, मतलब आप, आपके पापा, आपके दादा की परदादा, तो ये फैमिली ट्री बनेगा। बाय अलायंस होता है मतलब आप, आपकी बीवी, बीवी का फैमिली और उसका जो, ये हो गया अलायंस का कंसेप्ट, यही है देखो। बट उन्होंने वहां पे क्या पूछा, देखो ये तो आ रही है पार्ट, ठीक है, इतना आप एक्सप्लेन करोगे, लेकिन उसको तो बहुत 5 मार्क्स के आसपास मार्क्स है, आगे का जो है उसको ज्यादा मार्क्स है। क्या पूछा उन्होंने? डिफरेंशिएट बिटवीन इंडियन, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन किनशिप सिस्टम विथ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आएंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इरावती कर रहे, इनके बिना तो आंसर अधूरा है। और पैट्रिशिया उबेरा डालोगे तो 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लिखने के लिए मिलेंगे। बाकी तो देखो सारा पॉइंट तो यहाँ पे ही है, और ये तो आपको हर बुक में सोशियोलॉजी की मिलेगा, हर नोट्स में भी मिलेगा, और जिसकी नोट्स में आपको ये पॉइंट मिलेंगे वहां से आप कलेक्ट करो और आपके आंसर्स में डालो, राइट। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट विद एग्जांपल उन्होंने बोला है, इसीलिए देखो जब आप बोल रहे हो कि मैट्रिलिनियल सोसाइटी, तो नायर्स ऑफ केरला का एग्जांपल आना ही चाहिए, विदाउट एग्जांपल देन आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो उन्होंने जो जो क्वेश्चन में वर्ड लिखा होता है ना, हर एक को इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि उन्होंने क्या लिखा बोला है, तो 20 मार्क्स विल बी डिवाइडेड दैट यू नीड टू डिफाइन दिस 2 कांसेप्ट्स, इसको मार्क्स रहेंगे। देन यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीस 2 किनशिप सिस्टम्स, इसको मार्क्स रहेंगे। एंड देन एग्जाम्पल्स को भी मार्क्स रहेंगे। इसमें से जो भी चीज आप नहीं लिखोगे उसके मार्क्स चले जाएंगे। So with every point you need to bring the examples as well as understood. सिंपल ऑर्गेनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल है, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए देखा। देखो ये भी क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगा। ये देखो ये क्वेश्चन है, और ये हमारे क्लास नोट्स में दिया हुआ डिटेल डिस्कशन है, और इसके ऊपर हम लोग क्लास में भी 2-3 बार डिस्कशन ले लेते हैं। जिनका क्लास हुआ है तो पता होगा, जिनका भी चल रहा है उनको भविष्य में पता चले, राइट। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब जिन जिन लोगों का हमारा क्लास हुआ है 22 की बैच, 21 की बैच, 20 की बैच, क्या इसके ऊपर आप लोगों ने गला फाड़ा था? अरे किया है नहीं किया है? ट्राइबल पॉलिसी इंडिया में, ट्राइबल का पॉलिसी का क्या आगे था? तो सम पीपल आर सेइंग उनको आइसोलेट रखो, कुछ लोग बोल रहे हैं एसिमिलेट करो, कुछ लोग बोल रहे हैं इंटीग्रेशन करो। तो उसके रिलेटेड 3 अलग चीजें, लेकिन लिखते हुए देखो कैसे कि आइसोलेशन के बारे में वेरी रेलवे लिखते हैं। जब एसिमिलेशन लिख रहे हैं तो जॉर्ज बुरे लिख रहे हैं और बी आर अम्बेडकर लिख सकते हो, और जब इंटीग्रेशन लिख रहे हो तो अपने जवाहरलाल नेहरू लिखने चाहिए एज वेल एज निर्मल कुमार बोस लिखने चाहिए। तो देखो एक आंसर में 5 में स्कॉलर लेके आए, 3 पॉइंट बता दिए, लिख दिया। क्या मजा नहीं एग्जामिनर का, मुझे इसमें कम से कम 12 मार्क ना दे। जो उन्होंने पूछा मैंने सारा लिख लिया, और 10 से 12 करने, 12 से 13 करने, 12 मार्क्स लेके आओ तो भी मतलब दुकान ना पानी। Contemporary approach also I am trying to write, and also I am bringing one scholar
गिविंग अ कंटेम्पररी व्यू पॉइंट। तो ये मैं 3 पॉइंट, उसमें 5 स्कॉलर और कंटेम्पररी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि वे फॉरवर्ड क्या है उसमें से। अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है और ये कंटिन्यू करने, यही वे फॉरवर्ड है। ये मैंने बता दिया एक्स्ट्रा पॉइंट। Believe me, I am going to get 12 marks in these answers if I am writing this particular content. और यही तो ऑब्जेक्टिव है, सही है। आगे चलते हैं, देखो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन चेंजिंग एग्रीगेट क्लास स्ट्रक्चर इन इंडिया। आगे तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। रूरल एंड एग्रीगेट क्लास स्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ इट। उसको अलग अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे था, बिफोर ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम कैसे था, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे था, आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन कैसे बदला, 21st सेंचुरी में क्या है, एलपीजी ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट हुआ। ये स्टेजेस में हम लोग उसको पढ़ते हैं। नोट में सारा बढ़िया तरीके से दिया गया है, आराम से बैठ के पढ़ना है, उसके नोट्स बना के जाना। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया पूछा। नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया 10 मार्क, या ऐसे क्वेश्चन मिलेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन फंक्शनल एस्पेक्ट 10 मार्क, डिसफंक्शनल एस्पेक्ट 10 मार्क, या क्या प्रॉब्लम हुआ उसके। अभी उन्होंने पूछा विक्ट्री नैरेटिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है। मैं इंग्लिश पण आवड टाकतो। दोज हू आर प्रिपेअरिंग इन मीडियम अदर दॅन मराठी, स्पेशली मराठी मीडियम स्टुडंट, मराठी आपण जरी उत्तरार्ध वापरणार असलो तरी प्रश्न जर नाही कळाला तर खूप अवघड जातं। कारण आता त्याचं वरचं हिंदी वाचा, आता सिंपल है। भारतीय समाज के संदर्भ में हरित क्रांति की विजय गाथा का आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। हे तरी सिंपल है, बट इन जनरली इट इज द केस दैट हिंदी may not help you in that particular case. We cannot guarantee that की जे हिंदीचं ट्रान्सलेशन आहे ते समजून मला प्रश्न समजेल, तर तेवढं मराठी विद्यार्थ्यांनी काळजी घ्यायची आहे। इनिशियली नीड दॅट मच इंग्लिश, की प्रश्न मला कळला पाहिजे एवढं मला मराठी समजलंच पाहिजे। दिस इज अ व्हेरी व्हेरी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर मराठी मीडियम स्टुडंट। ठीक आहे, पुढे जाऊया आपण। विक्ट्री नॅरेटिव्ह म्हणजेच काय, द ग्रीन रिव्होल्यूशननी कसा फायदा झाला, हे जे विक्ट्री नॅरेटिव्ह आहे त्याला चॅलेंज केलं, म्हणजेच क्रिटिकली अनालाइज करायला सांगितले किंवा त्याचे निगेटिव्ह आस्पेक्ट लिहायला सांगितले। पण त्याच्यामध्ये बघा लिहिताना सोशल डायमेन्शन कसं घेऊन आलं, सोशल इनइक्वालिटी अमर कसे लिहिले, एन्व्हायरमेंटल डिग्रेडेशन वंदना शिवाय लिहिलेले आहे, त्यानंतर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॅडिशनल फार्मिंग कम्युनिटी आशिष नंदी लिहिलेले आहे, सीट डिपेंडन्सी ऑब्व्हियसली स्वामीनाथन यायला पाहिजे। वाचलेत का एम एस स्वामीनाथन, टाकले का त्यांचं सोशल प्रिझम टाकले का, टेलिग्राम चालले ते आता रिसेंटली पाच झाले, ठीक आहे, त्यांची डेथ आता रिसेंटली झाली, तर त्यांना ट्रिब्यूट देण्यासाठी आपण काय केलं, त्यांच्या नावाची नोट्स बनवली आपल्या सोशियोलॉजी मध्ये, ते कुठे कुठे उपयोगात असते आणि त्यांच्या रिलेटेड आपण काही कंटेंट लिहिलं। बिलीव्ह मी याचा उपयोग आपल्याला येत्या 1-2 वर्षात नक्कीच प्रश्नामध्ये होणार। तेव्हा प्रत्येक गोष्टीला आपल्या तरी करायचं, ह्याच पास्ट लोक स्टेटस करतात आणि नोट्स बनवत सोशियोलॉजी, ठीक आहे। इकॉनॉमिक्स मध्ये ग्रीन रिव्होल्यूशन, जिओग्राफी मध्ये ग्रीन रिव्होल्यूशन, फूड सिक्युरिटी, फूड सफिशियन्सी, दिस इज गोइंग टू बी द एरिया। सो आई एम प्रेडिक्टिंग 2024 का क्वेश्चन फॉर यू इन जीएस ऑल्सो। You will get a question on food security, something related to MS Swaminathan, because त्यांचा बुकच आहे फूड सिक्युरिटी, राईट। सो जीएस मध्ये आपण एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट केला, एक सोशियोलॉजीतला केला। दिस इज हाऊ यू नीड टू प्रिपेअर युअरसेल्फ। तर करंट अफेअर्स वर टॅग पाहिजे, लक्ष पाहिजे। याचा अर्थ काय, टू नॉट ओनली आय एम प्रिपेअरिंग करंट अफेअर्स फॉर द सेक ऑफ करंट अफेअर्स, नो, आय नीड टू नो व्हॉट इज माय सिलेबस, पीवायक्यू काय आलेले, त्याच्यामध्ये मला यावर्षी या प्रकारचा पीवायक्यू कुठला येऊ शकतो, म्हणजे कुठला क्वेश्चन यूपीएससी मध्ये येऊ शकतो पीवायक्यूच्या बेसवर। आय नो दॅट अँड आय एम प्रिपेअरिंग दॅट। अंडरस्टूड। मार्केट ओरिएंटेड ऍग्रीकल्चर, योगेंद्र सिंग असतील, ट्रॅडिशनल नॉलेज कसं गेलेलं आहे, स्कॉलर्स आर देयर टू राईट। अंडरस्टूड। दिस इज अबाउट सेक्शन ए ऑफ पेपर 2. सेक्शन बी becomes more dynamic in nature, bringing certain aspects from current affairs directly into your question paper. For an example, देखो development induced displacement check studies direct sanction. What is development induced displacement? That भागला लोकांना displace केलं. But as it alone gives us only argument, give me case studies. Now yes, everybody is going to write about Sardar Sarovar Dam project, but you need to write about Medha Patkar also.
and not as an activist here. We are not interested into her activism. We are interested into her views as an academician. So she has written a lot of articles and other things for her activity. But what was her argument? That displacement has disproportionately affected the marginalized sections of the society. This is her observation. Right? Then you can also talk about Niyamgiri Hills related aspect. Now displacement हुआ नहीं वहाँ पे, but that was an issue related to development based displacement. Dogri owned the community for the bauxite mining by Vedanta नावाची company होती. They came to Orissa, they got the license, but the tribal people protested there. So the project was dropped. It was a success of that tribal community. But we can simply say why they were not allowing them, because they are fearing that they will lose their way of life. Because for the generation they have stayed into that forest. That, let's say, hill, Niyamgiri Hill, that is a part of their life. They worship it as a god. Their life is around it. So it is a tribal way of life that would have got disturbed if the project would have been there. ये point लिख सकते हैं. I have also given some of the examples from, let's say, other part of the world, just to make sure that अगर future में ये question paper 1 में पूछते हैं, so you will have content with respect to it. You can also make some Indian examples from the examination paper. So 3 Indian example है, 3 बाहर के example है, you can take some example for understanding. Understood? Now, guys, आप चिपको movement का भी example ले सकते हैं. Everybody will give that. नर्मदा सरोवर का भी example बहुत सारे लोग देंगे. But this is an example which has to be given, right? आगे cultural pluralism as a context in unity in diversity. तो paper 2 के most of the questions, especially section 2 के question, section B के question, आपको GS के question ही लगे. लग रहे हैं? यही क्वेश्चन उठा के अगर इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 में डालेंगे तो चलेगा, बट आंसर फर्क होगा. अरे आप समझ रहे हो? यहाँ पे आंसर बहुत बढ़िया से आपने लिखा है, तो इसमें आप लेके आओगे थिंकर्स, ये फर्क है आप, और इसमें आप लेके आओगे सोशियोलॉजी की थीरीज. फॉर एग्जांपल यू विल कंपेयर इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी मॉडल विद मेल्टिंग पॉट मॉडल ऑफ यूएसए with salad bowl model of United Kingdom, right? तो ये सारे हैं, ये पढ़ेंगे हम लोग क्लासरूम में. नए लोग जो पुराने लोग हैं हम लोगों ने पक्का पढ़ा है. आपको अगर याद नहीं है तो आज मेस में जाके सलाद खा लो, उसको खाते खाते ये मॉडल पढ़ लो. पॉट में खाओगे तो और भी अच्छा है. तो मेल्टिंग पॉट सलाद मॉडल रिवीजन होता है. ठीक है, देखो आगे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हाइलाइट्स बताओ, साइलेंट फीचर्स बताओ. आगे I have given you features also of it. ये जीएस में भी आ सकता है क्वेश्चन, राइट? सोशियोलॉजी में पूछा है, तो उसके साथ आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे सोशियोलॉजी के थिंकर्स एंड थियरीज. जैसे कि जब मैं बोल रहा हूँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में, जब मैं बात कर रहा हूँ 3 to 6 ईयर वाला, अभी वो आंगनवाड़ी वाला एजुकेशन या प्री स्कूल जिसको बोलते हैं, उसमें आपको तुर्की साहब लेके आने पड़ेंगे. He also talks about internalization of social values, और इसी वजह से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होगा. यही तो सोशलाइजेशन का मॉडल है तुर्की का, सही है? तो इसको लेके आना पड़ेगा यहाँ पे. Then when you are talking about, let's say, how education is going to help you in building yourself as a person suitable for contributing into society, तो इसका मतलब क्या है? You are making yourself, you are developing something with you which can be used later on. तो इसको आप बोल सकते हो कल्चरल कैपिटल का कंसेप्ट या सोशल कैपिटल का कंसेप्ट. तो सिंपल एग्जांपल है, इफ यू आर फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज, लेट्स से आईआईटी, और आपने कोई स्टार्टअप शुरू कर दिया, तो बिलीव मी यू विल गेट अ फंडिंग इन अ वेरी इजी वे, बिकॉज आपके ही बहुत सारे सीनियर्स जहाँ पे आप फंडिंग मांगने के लिए गए हो किसी कंपनी में, वहां पे जॉब कर रहे होंगे. तो आप उसको बोलेगा मैं आईआईटी पर गई, तू आईआईटी पर बोलेगा क्या बढ़िया, थैंक यू सर, ये बढ़िया प्रोजेक्ट है. वो बोलेगा ये तो होशियार बंदा है, आईआईटी से मेरे से सही है, तो इसलिए होशियार है, राइट? तो आपको क्या मिल जाएगा? इजीली फंडिंग मिल जाएगा.
तो इसको बोलेंगे कल्चरल कैपिटल। अरे आप समझ गए, नेटवर्किंग वाला सोशल कैपिटल और कल्चरल कैपिटल का कंसेप्ट है। आपको नेटवर्किंग मिलेगा, आपको वो पीयर ग्रुप मिलेगा, आपको वो सारी चीजें शुरू से मिलेगी जो किसी और को नहीं मिल रही है। एंड दैट इज व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एजुकेशन पॉलिसी। सो नोबडी शैल बी लेफ्ट बिहाइंड। तो कोई एजुकेशनली मार्जिनलाइज नहीं रहेगा या आउटकास्ट नहीं रहेगा, इसको पीयर बॉडी के तरीके से जोड़। Now such can be discussed and divided into lot of other points also. Now you go into that discussion जैसे कि focus on education in tribal and marginalized area. So this is an integration approach of tribal policy. सही है क्या? अभी थोड़ी देर पहले बात किया ना कि tribal communities shall be integrated within the main communities. So education is the basic tool to integrate them into mainstream society. तो उसका cultural identity भी रहेगा, बट एट द सेम टाइम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका होगा। अंडरस्टूड? तो ये देखो 3, 4, 5 पॉइंट में आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी की कनेक्ट करके दे सकता हूँ। नाउ आप थोड़ा सा जाओ उसके बारे में पढ़ो एंड देन यू विल गेट मोर पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट। अंडरस्टूड? आगे जाते हैं। देखो अगेन क्वेश्चन इज ऑन सोशल मीडिया एंड मास मोबिलाइजेशन। कुछ ऐसे ही आए थे थोड़ी देर पहले पेपर में ऐड। अरे मी टू मूवमेंट का एग्जांपल लिया था, लेकिन अभी क्या पूछा है इन इंडिया। अभी यहाँ पे जास्मिन रेवोल्यूशन अरब स्प्रिंग नहीं लिख सकते। अरे आप समझ गए, यहाँ पे अगर अरब स्प्रिंग लिखोगे तो एग्जामिनर बोलेगा जा गल्फ में जाके मार्क्स लेके आ। इंडिया में नहीं मिलेगी क्योंकि पूछा है इंडिया का क्वेश्चन, तुम लिख रहे कुछ वही। हम नहीं तो लिख सकते हैपेंड इन इंडिया आल्सो, राइट? तो वो वाला चीज आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, आप उसमें से आराम से पढ़ो और वहां से लिख लो। आगे का क्वेश्चन देखो, नेचर ऑफ रीजनल वेरिएशन इन सेक्स रेशियो इन इंडिया, और उसके रीजन भी बताओ। ये देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी का है और हम लोग यहाँ पे इसको अपने टेस्ट सीरीज के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। ये देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है सिलेबस का, अपना टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज 2023 टेस्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 सी क्या है? डिफरेंशियल सेक्स रेशियो एंड इट्स इंप्लीकेशन। क्या ये पूछा है? नेचर ऑफ रीजनल वेरिएशन एंड सेक्स रेशियो इन इंडिया। सेम क्वेश्चन है, सेम आपको यूपीएससी में भी मिलेगा। इसी साल की टेस्ट सीरीज में पूछा है और टेस्ट नंबर 6 तो आई थिंक चला होगा इन द मंथ ऑफ इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ अगस्त में होगा टेस्ट। और आपने सितंबर में मेंस लिखा है। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज लिखा था उनको बहुत फायदा हुआ। ऐसे लोग आके खुद ही बता रहे हैं जिन लोगों ने हमारा टेस्ट सीरीज लिखा है उन्होंने ये बताया कि सर इसमें बहुत फायदा हुआ। तो इसमें आप सिंपल देख सकते हो, देखो कैसे बनाया कि हरियाणा पंजाब रीजन लिया, वहां पे लो सेक्स रेशियो है, मतलब मेल फीमेल का स्क्यूड है। नॉर्थ ईस्टर्न में जाओगे तो हाई सेक्स रेशियो, उसके रीजन भी देने पड़ेंगे। क्या रीजन है? मोर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हरियाणा पंजाब में पैट्रियार्कल सोसाइटी, डाउरी सिस्टम और ये सारा रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मैट्रिलिनियल सोसाइटी का प्राइमरी रीजन की वुमेन आर मोर इन नंबर। केरला में also women are more in number, but also one of the reason in matrilineal society, but other reason is education. तो फीमेल फेटिसाइज वगैरह बहुत कम है, वुमेन आर इक्विवेलेंट टू मेल। देन लेकिन साउथ इंडिया में जाओगे तो आपको मिक्स दिखेगा, वेस्ट इंडिया में भी आपको मिक्स दिखेगा, राइट? बट स्पेशली इफ यू गो टू अर्बन एरिया या यूनियन टेरिटरीज यू विल फाइंड आउट नंबर ऑफ मेल्स आर मोर देन फीमेल्स। तो स्क्यूड सेक्स रेशियो है, but इसका सोशल डायमेंशन अलग है। इट इज हाईली बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन एरिया। मोर वर्क इज डन बाय मेल। तो जो भी रूरल एरिया से माइग्रेशन होता है अर्बन एरिया में वो मेल डोमिनेटेड है। वुमेन आर स्टेइंग एट रूरल एरिया बैक देयर होम, मेल आर कमिंग टू अर्बन एरिया। तो इसलिए अर्बन एरिया में मेल ज्यादा दिखेंगे आप। अरे समझ रहे हो? तो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस यू हैव टू गिव। तो सिर्फ पॉइंट लिख के नहीं होगा, उसका सोशल एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है? अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस इन रिलीजन इन पर्सनल एंड स्फीयर, सेक्युलराइजेशन थीसिस के साथ कनेक्ट करो। अगेन दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। देखो ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, ये क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का।
आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। आगे लिखते हैं, देखो ग्लोबल क्लाइमेट कंसर्न के रिलेटेड चिपको मूवमेंट और इसका एक्सप्लेनेशन लिखो। अब ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं जानबूझ के स्टार मार्क करूंगा क्योंकि इसमें ना उन्होंने दो चीजें दी है, ग्लोबल क्लाइमेट कंसर्न और उसको शायद रिलेवेंस ऑफ चिपको मूवमेंट एंड इस गांधीयन को। तो ये दोनों चीजें आप सब लोगों को पता है, बट क्या आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, इसीलिए उन्होंने बोला है एनालिटिकली आंसर करो, इसको एनालाइज करो और बताओ। तो ये स्किल आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज से आता है, जब आप बहुत सारी टेस्ट देते हो और जो क्वेश्चन में पूछा है वो चीजें अलग अलग भी आपको पता है। फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू नो द थियरी ऑफ मार्क्स वेबर राइट, द थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और अगर आपको वहां पे वो एक पॉइंट बताया गया है, लेट्स से somebody else is talking about bureaucracy, ये दो चीजों आपको पता है बट आपने लाइफ में उसका कभी कोरिलेशन नहीं किया था पढ़ाई करते रहते, बट इतनी टेस्ट लिखी है अगर आपने तो वो कोरिलेशन आप एग्जाम में बैठ के बिना टाइम वेस्ट करके भी कर सकते हो। सो टेस्ट सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू, राइट। तो देखो इसमें कैसे जोड़ सकते हो, तो जो यूएफसीसी का डिस्कशन चल रहा है क्या ये ड्यूरिस्टिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है? अरे तो जो रॉबर्ट हाल बोलते हैं प्लूरलिस्टिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस, तो यही बात हो रही है। कॉमन पर डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी के बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आगे वी विल टॉक अबाउट एथिकल प्रिंसिपल्स इन द कैपिटलिस्टिक मोड, मैक्स वेबर को लेके आएंगे। एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज की कंसेप्ट की बात करेंगे, तब हम लोग जो माइग्रेशन और पॉपुलेशन डायनामिक्स का टॉपिक है उसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये समझो कि इतना सिंपल ये नहीं है कि आपको सिर्फ उन्होंने पूछा है कि चिपको मोमेंट के साथ कनेक्ट करो तो चिपको 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 उसके साथ चिपक नहीं, उसको समझना है। चिपको मोमेंट मतलब उन्होंने क्या पूछा है, गांधी टोन और चिपको मोमेंट की क्या क्या फीचर्स थे, उसको अभी जो ग्लोबल कंसर्न चल रहा है एनवायरमेंट का उसका क्या है, उसको दोनों को कनेक्ट करके आपको लिखना पड़ेगा। अरे समझ गए, राइट। आगे एक्शनेबल मेजर्स क्या सजेस्ट करोगे टू कर्ब द लेबर मीनस चाइल्ड लेबर मीनस इन द इंडिया? ये डायरेक्ट सिलेबस का पॉइंट है, चाइल्ड लेबर या ये बॉन्डेज लेबर, ये कंसेप्ट हमारे सिलेबस में डायरेक्टली दिए, वो क्लासरूम में हम लोग आराम से करते हैं, उसके पॉइंट्स भी लिख के रखते हैं। तो बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोशियोलॉजी लेके आना विल बिकम अ चैलेंज, बट वो आप कर सकते हैं। देन अगेन decades of Dalit political mobilization है and how it has helped to strengthen the Indian democracy। आगे देखो दो पॉइंट एक साथ किए हैं उन्होंने, कैसे देखो सिलेबस में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी का पॉइंट तो यहाँ पे ही पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी, और इसमें आपको दलित मूवमेंट, ये दो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे ऐड किए हैं। देखो एथनिक एंड आइडेंटिटी मूवमेंट, दलित मूवमेंट, तो उन्होंने दो पॉइंट एक साथ करके आपको पूछा है कि इसका आंसर बताओ। तो इसको सिंपल लिखेंगे, यू नीड टू नो द स्टेजेस, ये क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो शुरू करेंगे हम लोग फ्रॉम द मेडिवल टाइम्स, तो भक्ति मूवमेंट का रिजल्ट्स में बताऊंगा आपको वहां पे, बट आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम 19th सेंचुरी। तो जो महात्मा फुले जी का मूवमेंट है सत्यशोधक वहां से थोड़ा सा शुरू करेंगे उसको, देन वी विल ब्रिंग इट टू अम्बेडकर राइट मूवमेंट व्हेन इट बिकम अ मास मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, and then we'll continue it after the independence also, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि combination of literary movement as well as identity movement है politics में। तो दलित literature भी form हुआ, at the same time it reflected on the political structure, जहाँ से आपको दलित पैंथर as an organization form हुआ है। So as an organization भी है, as an ideology भी है। तो बाद में दलित पैंथर as an organization continued for some time in the political sphere, but then it become a very less known entity in political area. But the ideology remained, and lot of political interest with pressure groups and political parties were formed on the basis of Dalit identity, or let's say backward class identity. इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हो, बहुजन पार्टी का एग्जांपल दे सकते हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वंचित आघाड़ी, these are the examples that you can put। बहुजन समाज का तो एग्जांपल पहले नेशनल लेवल पे सब लोग उसको जानते हैं। अरे समझ गए, तो इसको मैथमेटिक्स का आंसर भी डिस्कस हो गया। रिवर्स माइग्रेशन, ना ये टॉपिक इतना रटा है कि इसको हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर में भी डाला था टेस्ट सीरीज के। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा
रिवर्स माइग्रेशन, और उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन डाला है टेस्ट सीरीज में लास्ट ईयर, राइट। तो उससे आप पढ़ सकते हो, वेरी रिलेटेड क्वेश्चन, जीएस में भी आया है, सोशियोलॉजी में भी आया है, तो ये टॉपिक हमारा प्रिपरेशन से छूटना नहीं चाहिए। आगे जाते हैं, देखो वेरी फ्यू लास्ट क्वेश्चंस, जैसे कि फिनोमेना ऑफ रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम, ये भी आगे सिलेबस के साथ कनेक्टेड है। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि कार्ट क्लास कॉन्टिन्यूम, तो दो अलग कंसेप्ट रहेंगी, उसको क्लियर करके किसी थिंकर ने कुछ थ्योरी लिखा हो तो उसको स्पेसिफिकली पढ़ना है। जैसे कि अभी भी रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम में क्या है, सोसाइटी चेंजिंग, सम पीपल आर सेइंग रूरल सोसाइटीज बिकमिंग एन अर्बन सोसाइटी, तो वेस्ट में कंप्लीट हो गया, स्पेशली इन यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में, इंडिया में नहीं हुआ। तो हमारे पास देखो रूरल सोसाइटी भी है, अर्बन सोसाइटी भी है, बीच में भी है कुछ, है कि नहीं। तो ये है रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। तो जो लोग, सेटलमेंट, विचार, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, आइडियोलॉजीज आर बोथ फ्रॉम रूरल एज वेल एज अर्बन वे ऑफ लाइफ, जहां पे आपको मिलेंगे, दैट इज रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम। इसीलिए अगर आपको याद आ सकता है तो वापस यहाँ पे भी फर्डिनांड टोनिस को लेके आ सकते हो, वापस यहाँ पे भी आप अलग अलग जो भी स्कॉलर हम लोगों ने सारे पढ़े उनको लेके आ सकते हो। मैं अपना मैकेनिकल सोसाइटी, ऑर्गेनिक सोसाइटी लेके आ सकते हो, या बाद में हम लोग जो जो सारे पॉइंट्स पढ़ते हैं उसको भी आप लेके आ सकते हैं। अरे समझ गए, और स्पेसिफिक उसके रिलेटेड भी अलग अलग पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। अरे समझ गए। अनदर वे, पैट्रियट एंड ऑनर किलिंग के बीच में क्या लिंकेज है वो डेवलप करना है। नाउ दिस इज आल्सो अ टॉपिक दैट वी जनरली cover in the class, very important topic, contemporary है, but nowadays because many times this question is been there, we have to prepare it very well. तो उसमें भी देखो आपको रिसेंट केसेस भी दिए हैं, उनके लिए सोशियोलॉजी स्पेसिफिक आदमी तो हम लोग क्लास में भी पढ़ते हैं उनके बारे में। रिसेंट केसेस मतलब आप रिसेंट वाले भी लिख सकते हो, बट दीज आर वेरी वेल नोन, इसलिए वहां पे लिखे। Now challenges faced by cooperative movements in India, again इसके बारे में, it's a kind of an area which generally students do not prepare, but again ये kind of an offbeat question है, but question paper में आया है तो सोचना पड़ेगा, लिख सकते नहीं लिख सकते, but उसके रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, आप उसको यूज कर सकते हैं, राइट। एक देखो पॉपुलेशन डायनामिक्स क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा है, एजिंग क्या है और मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एज पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन डायनामिक का क्वेश्चन है। इसको तो आप सब लोगों को तैयार करता रखना पड़ेगा, जो चिल्ड्रंस, वुमन, थर्ड जेंडर, ओल्ड एज एंड बाकी की जो भी पॉपुलेशन के सेगमेंट्स होते हैं, माइनॉरिटीज, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, उसके सोशियोलॉजिकल स्टडीज क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है, उसके सोशियोलॉजिकल स्टडीज क्या है, ये सारे हम लोग प्रिपेयर करके रखेंगे। कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ दिखेगा। अरे कुछ समझ गए? तो दिस इज हाउ वी हैव डन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। यस, कुछ क्वेश्चन बोल रहे थे, understood? So that is what we have understood. Now let's sum up all the discussion in next couple of minutes, and then you will be all free to go आणि जेवणात तुम्ही बघा, ठीक आहे? तुमच्या पोटात असणारे सावधानता मला इकडे टाकले, काही काही लोकांना अशी भीती वाटत होती की सर आता 4-5 वाजेपर्यंत बोलायला सांगितले, तर असं काही. So see, so we'll sum up in next 2 minutes. Just think about it. It is all about that 6 hours in the examination hall. It is all about the 6 hours in the examination hall. 3 hours of paper 1, 3 hours of paper 2. But believe me, you need to give a lot of effort before going to that examination hall. Or usme reading is the only, or it is the first step. Lecture करना is the 0th step. तो आप अटेंड करोगे, लेक्चर करोगे, वहाँ सीख रहे. After that, when you go home, you will read whatever has been suggested to you. You will read some extra from the reference material. That is the first part. उसके बाद जो notes निकालना है of the complete syllabus. That is the second part. अभी भी यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनका बैच लास्ट ईयर उसके पहले हुआ है, उनके कुछ सिलेबस के टॉपिक्स के नोट अभी भी कंप्लीट नहीं, तो ऐसे ही उसका इनकम्प्लीट अगर आप लेके जाओगे जून के बाद तो तब तक तो आप नहीं बना सकते हो. दैट इज फॉर श्योर, राइट. तो नोट्स कंप्लीट बनाओ, पूरे सिलेबस के नोट कंप्लीट होने चाहिए. इट कुड बी इन एनी फॉर्म, योर हैंड रिटन नोट्स, और यू हैव लेट्स से टेक आउट सम पेजेस फ्रॉम वन बुक
some pages from another book, and then you have, let's say, bundled together, and that is notes for you. You decide what are notes for you, but I will prefer handwritten notes that have been prepared by your handwritten मतलब खुद वाले. कुछ लोगों के टॉपर्स के हैंडरिटन नोट्स हैं, मतलब खुद वाले खुद के जो हैंडरिटन नोट्स है जो खुद ने 4-5 बुक्स पढ़ के बनाए, वो वाले नोट्स आई विल बी जनरली प्रिपेयर. So this is the second step. Then third stage is to write answers. तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक तो आंसर लिखना, that is only a kind of a thing that we do for seeing that whatever we read have we understood it all. तो ये तो बहुत ही बेसिक पार्ट है. बट राइटिंग द टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एटलीस्ट 100 मार्क का 1-1.5 घंटा बैठ के आपको लिखना पड़ेगा ऑन द सिलेक्टेड टॉपिक, और उसमें मल्टीपल 2-3 टॉपिक कम से कम होने चाहिए. इट शुड नॉट बी द केस दैट आई विल हैव रीडिंग लेट्स से मैथ्स पेपर और उसका प्रेक्टिस स्टैटिस्टिक्स और स्पिरिट ऑफ पेपर, उसके 5 क्वेश्चन लिखूंगा तो उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होगा. बट सपोज आई एम सेइंग दैट यस आई एम टेकिंग स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, ये 3 टॉपिक पे पढ़ूंगा और फिर उसके ऊपर मैं टाइम लगा के 1.5 घंटा 10 क्वेश्चन लिखूंगा. तो वो है रियल प्रैक्टिस. इसको हम लोगों को लेके जाना है 90 क्वेश्चन से 3 आवर्स, आइडियली 2 आवर्स एंड 50 मिनट्स. तो दैट इज आवर टारगेट. तो उस टारगेट को जाने के लिए दिस इज अ स्टेप 3 दैट यू हैव टू फॉलो, राइट. सेमी टेस्ट सीरीज या छोटा टेस्ट सीरीज which we are making on for you all people starting from next Sunday. तो आप लिखो और उसमें भी I will ask you to write the test on the given date only, coming here, sitting in the classroom. Agar because of some reason you are not able to cope up with the timetable, still don't worry about it. Try to write the test when you will complete the syllabus. Let's say कि कोई part of syllabus मेरा 7 दिन में नहीं complete हुआ, मुझे 10 दिन लगे, कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद देखो. We will also try to make you classroom available you to sit and write. तो जैसे एक बार ऑफिस में आके रिसेप्शन पे आप पूछ के जाना कि सर मुझे आज टेस्ट लिखना है, तो मैं जगह मुझे मिली गई क्लास में बैठ के. दे विल गिव यू टाइम, तब आप आओ बैठ के टेस्ट लिखने का कोशिश करो. बट जो एलोकेटेड टाइम है उस टाइम पे तो आपको डेडिकेटेड क्लासरूम अवेलेबल होगा. सो यू विल हैव अ यूपीएससी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट. तो वहां पे बैठ के आप टेस्ट सीरीज लिखोगे तो बढ़िया फीलिंग भी आएगा. तो फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको वहां पे दूंगा, बट आई विल सजेस्ट दैट कि वो फ्लेक्सिबिलिटी फिर आगे बढ़ाते जाता है, प्रीलिम्स का टाइम आएगा तो यू शैल स्टिक टू द सिलेबस एंड द टाइम टेबल, राइट. और जैसे कि पहला टेस्ट आप चाहे तो आगे लिख भी सकते हो, यू कैन कम एंड राइट द टेस्ट इफ यू फील दैट यस दिस इज अ गुड टेस्ट आई नीड टू राइट इट. और लिखने के बाद ऐसे लग भी रहा है कि हाँ आई नीड दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस टू प्रिपेयर सोशियोलॉजी, then you join the test series from the and then you can attend it from the second test series. जो लोग फर्स्ट टेस्ट लिखेंगे एंड एडमिशन कंप्लीट करेंगे उनका टेस्ट हम लोग इवैल्यूएट करके देंगे. बट यू आर आल्सो फ्री टू राइट द टेस्ट फर्स्ट टेस्ट, यहाँ पे बैठ के लिखो घर पे बैठ के. बट फॉर दैट मैटर यू नीड टू रजिस्टर विद द ऑफिस, तभी आपको वो ये सारा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करके देंगे. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट स्टेज इज रियली आपका पूरा सिलेबस होना चाहिए कंप्लीट, देन नोट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके. Third thing is how to write a test series, and only time limited is till the December. January से I think most of the people will shift for the prelims examination, right? और चौथा सबसे important चीज, do focus on your previous year question paper all the time in all the 3 stages of your preparation. Reading कर रहे हो फिर भी रिवाइज को देखनी चाहिए, नोट्स बना रहे हो फिर भी रिवाइज को देखनी चाहिए, और आप टेस्ट सीरीज अटेंड कर रहे हो तब भी आपको रिवाइज को देखनी चाहिए. Or again, in the reviews, I am focusing more on the last 5 years test. तो 2018, 20, 21, 22, 23 ये 4-5 साल के पेपर जो 5-6 साल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके पिछले भी आप थोड़ा सा देख ही ले लो, देखने में कोई हर्ज नहीं है. बट प्लीज स्टे अवे फ्रॉम सच टाइप ऑफ लेट्स से माइंडसेट दैट जो बोल रहे कि नहीं अभी भी 2012 का पेपर का पैटर्न आता है और सोशल एक्शन के ऊपर 10 मार्क का नोट लिख के आ जाओ, मैं इवैल्यूएट करके दूंगा, मैं आपको शाबाश भी दूंगा, आप चले के जहाँ पे चढ़ जाओगे, वो वाला कुछ लोग आपको बताएंगे. तो प्लीज बी अवेयर अबाउट व्हाट यूपीएससी इज एक्चुअली आस्किंग. और उसके लिए मैं आपको क्या बताऊं, 2023 का क्वेश्चन पेपर सामने को 22 का रखो, 21 का रखो, मार्क्स का तो आपके सामने मैंने दिया ही. सम पीपल माइट से यू दैट कि सिर्फ लिख कर बोलो आधे से ज्यादा तो टेस्ट पेपर आप आधे से ज्यादा पर आंसर वही पे खत्म हो जाएगा. तो दे आर जस्ट टेलिंग यू समथिंग व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से
हाँ, दिस मे बी द केस दैट की थिंकर आप पढ़ोगे तो आधा सिलेबस पढ़ने जैसा है, क्योंकि आधा पार्ट हमेशा आपका थिंकर रिपीट होता है, बट दैट डज नॉट मीन किसी थिंकर पढ़ने से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप लिख सकते हो। वो वाला बात करने में वो नए नए लोगों को अच्छा लगने के लिए सब लोग बता सकते हैं, बट व्हेन यू कम टू रियल एग्जामिनेशन, देखो शुरू शुरू में अलग होता है सब जगह, लाइक शुरू में अलग होता है, बाद में रियलिटी पता चली जाती है। वैसे एग्जामिनेशन का भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन जो ठीक है। तो पेपर 1 का ऐसे है, पेपर 2 का ऐसे है, अलग अलग वन मोर थिंग स्टॉप, पेपर 1 और पेपर 2 अलग नहीं है एक दूसरे से, नॉट इन सिलेबस आल्सो, not in shall be your preparation and not in even the question formulation or setting। जिस एरिया में क्वेश्चन पेपर 1 में फोकस किया है उसको उन्होंने क्वेश्चन 2 में पेपर 2 में ज्यादा फोकस किया है, या जिस एरिया में क्वेश्चन या पेपर 1 में कम फोकस है उसको उन्होंने पेपर 2 में ज्यादा डाला है। कुछ क्वेश्चन उन्होंने डायरेक्टली पेपर 1 के पेपर 2 में डाला है, कुछ क्वेश्चन पेपर 1 के पेपर 2 के पेपर 1 में डाले। तो आप भी पढ़ते हुए ऐसे मत सोचना कि मैं पेपर 1 कंप्लीट किया, पेपर 2 कंप्लीट नहीं, तो फिर आधा ही पढ़ाएगा, सारी चीज आधा ही पढ़ेगी। तो जब भी प्रिपेयर करोगे डू इट इन अ कोलैबोरेटिव वे। जैसे हम लोग क्लासरूम में मैं आपको पढ़ाता हूँ कि जो ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये टॉपिक पढ़ोगे तो लॉजिकल है, नोट्स भी अच्छे बनेंगे, पढ़ाई भी अच्छा होगा, टेस्ट भी अच्छे लिखोगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे, रैंक भी अच्छे आएंगे। अभी समझ रहे हो? तो देखो 5 स्टेज प्रोसीजर आप लोग कहाँ तक पहुंचते हैं। मैं तो चाहता हूँ 5 स्टेज क्लियर करके आ जाओ, तो मेरा जेडब्ल्यू लाइन का वाला जो बेंच वाला वाले वो सक्सेस, ठीक है। चलो, सो डू यू अंडरस्टूड ऑल? कुछ डाउट है तो यू कैन वेट एंड देन वी कैन टॉक, अदरवाइज द क्लास इज ओवर।